سانس کے ساتھ کھو جاتا ہے گزرا ہوا لمحہ اور شروع ہوتا ہے ایک نیا لمحہ۔ ہم سانس اندر کھینچتے ہیں اور اسے باہر خارج کر کے ماضی کے لمحے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ ہمارے لیے فنا ہو چکا ہے اور یہ کرتے ہوئے ہم فنا کر دیتے ہیں اس انسان کو جو ہم ایک لمحہ پہلے تھے۔ ہم سانس اندر کھینچ کے نئے لمحے میں سانس لے کر اس شخص کا استقبال کرتے ہیں جو ہم بننے جا رہے ہیں، اور یوں ہم اس عمل کو دہراتے ہیں۔ یہی مراقبہ ہے، یہی تجدید ہے، یہی زندگی ہے۔ مبین منزل میں بنے بیڈ رومز میں واحد ماہی کا کمرہ تھا جس کی کھڑکی عقبی صحن میں کچن گارڈن کی طرف کھلتی تھی۔ چند روز قبل وداع ہوئی فاختہ کی قبر بھی وہیں تھی۔ اس کی مٹی کا رنگ اختراف جیسا ہو گیا تھا اور اس پر ننھی ننھی سی گھاس اگ رہی تھی۔ مالا کھڑکی سے نظر آتی اس قبر کو دیکھ رہی تھی جب معید کھنکارا، تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ اس نے چہرہ موڑ کے اپنے بھائی کو دیکھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ 7 برچمان ماہی گود میں رکھی چاولوں کی پلیٹ میں سے کھاتے ہوئے ان کی طرف متوجہ تھی۔ وہ تینوں اس وقت ماہی کے کمرے میں تھے جس میں جگہ جگہ بیبی فیڈرز، فارمولا ملک کے ٹن اور ایسی دیگر اشیاء بکھری تھی۔ زیاد اور میں نے مل کر فیصلہ کیا، ہم دونوں کو اپنی آئندہ زندگی کے لیے یہ بہترین لگا ہے۔ وہ پورے اعتماد تھی۔ معید نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی اور دھیرے سے مسکرا دی۔ مجھے زیاد ہمیشہ سے پسند رہا ہے، ویل مینرڈ، اچھی جاب کرتا ہے، ڈیسنٹ ہے لیکن ماہی نے 7 پہ چاولوں کا چمچہ منہ میں رکھا۔ وہ دونوں اس کے لیکن پہ چونکے سے دیکھنے لگے۔ وہ گڑبڑا گئی۔ وہ جلدی جلدی چاولوں کو حلق سے نیچے اتارا، پھر پانی کا گھونٹ بھرا اور کھنکاری، لیکن تمہیں زیاد سے بہتر بھی کوئی مل سکتا ہے۔ تمہیں زیاد میں کیا برائی نظر آتی؟ وہ چونکی، ماتھے پہ لکیریں ابھری۔ اسے ماہی کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ زیاد ذرا ماہی الجھ کے رک گئی، جیسے کچھ حلق میں اٹک جاتا تھا، جیسے کوئی سوچ جکڑ لیتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، بس سوچ لو۔ تم بھی سوچ لو ماہی، سفید چاول کھائے جا رہی ہو، یہ جانتی ہو صحت کے لیے کتنے نقصان دہ ہوتے ہیں؟ معید نے اس کی پلیٹ کو افسوس سے دیکھا۔ ماہی کے ماتھے پہ بل بڑے زور سے چمچ پلیٹ میں رکھا۔ سب میرے کھانے کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ وہ مزید کچھ کہتی لیکن فون بجنے لگا۔ ایک خفا نظر دونوں پر ڈال کے پلیٹ اور فون اٹھائے وہ وہاں سے اٹھ آئی۔ خالہ کی کال ہے، میں سن کے آتی ہوں۔ جاتے جاتے بھی معید کو شدید بری طرح گھورا تھا۔ کون سی خالہ؟ معید نے غائب دماغی سے پوچھا۔ مالا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ہماری کتنی خالائیں ہیں معید؟ ایک ہی تو ہے، ماں اور نور جہاں، خالہ کی سب سے بڑی بہن سمر جہاں۔ اسے کہو سمر خالہ، ماہی کی ساس۔ تم لوگ بھی ہر پڑوسن کو خالہ بنا لیتے، مجھے کیا پتا؟ وہ ہنس دیا اور پھر افسوس سے اسے دیکھ کے رہ گیا۔ خالہ کے طرز تخاطب ہم صرف سمر خالہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تمہاری سگی خالہ اور پڑوسیوں میں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ رشتہ داریاں یاد رکھنا صرف لڑکیوں کا فرض نہیں ہوتا۔ وہ دونوں آپس میں الجھ رہے تھے اور کچن میں کھڑی ماہی موبائل فون سے لگائی سادگی سے اپنی ساس کو بریفنگ دے رہی تھی۔ ابھی نگینہ آنٹی نے صرف فون پہ معید اور مجھ سے بات کی ہے، اگلے ہفتے وہ انکل کے ساتھ پاکستان آئیں گی تو ہم بات پکی کریں گے۔ نگینہ کے گھر رشتہ کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ خالہ جھنجھلائی۔ ماہی چونکی، کیوں، کیا ہوا؟ وہ لوگ مالا کے قابل نہیں ہیں، اتنی جلدی مت کرو۔ مگر خالہ زیاد میں کوئی آپ رائی ہے؟ ماہی الجھ سی گئی۔ مالا کو اس سے بہتر مل سکتا تھا، وہ افسوس سے بولی۔ ماہی نے بے اختیار لاؤنج کے پار اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ اب بھی یہی تو اس نے بھی کہا تھا، آپ مالا سے بات کر کے دیکھیں، میں خود آ کے اس سے بات کروں گی، مگر آپ نے 2 ماہ بعد آنا ہے، فون پہ بات کریں۔ وہ بے چین ہوئی۔ یہ باتیں فون پہ نہیں ہوتی، اور تم لوگ فوراً جواب نہ دو، تھوڑا وقت مانگو۔ 2-3 ماہ تو لڑکی والوں کی چوکھٹ پہ جوتے گھساتے ہی ہیں۔ وہ آرام سے بولی۔ ماہی نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ اب واپس آئی تو قدرے غائب دماغ سی لگ رہی تھی۔ خالہ کیا کہہ رہی تھی؟ مالا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سوچ میں گم تھا، اب سے صوفے پہ بیٹھی۔ خالہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے آنے کا انتظار کریں اور رشتہ ان کی موجودگی میں طے ہو، ہماری طرف سے کسی بڑے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس نے الفاظ جوڑے۔ میں ہوں نا؟ معید کو کچھ برا لگا۔ اور ماموں بھی آ جائیں گے، مسئلہ کیا ہے؟ خالہ ابھی لمبا سفر نہیں کر سکتی، ان کے گھٹنے کی سرجری ہوئی ہے نا، ماں کی ڈیتھ پہ بھی اسی لیے نہیں آ سکی، ہم ان کا انتظار کر سکتے ہیں، جنوری کے آخر تک وہ آ جائیں گی، اور میں تو مارچ تک یہیں ہوں۔ بظاہر اس نے بے پرواہی سے شانش کیا، البتہ کمرے میں پھیلا تناؤ سب محسوس کر سکتے تھے۔ نگینہ آنٹی کینسر پیشنٹ ہیں، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ 2 ماہ میں شادی کی بات کر رہی تھی اور تم کہہ رہے ہو ہم رشتہ تک طے نہ کریں؟ معید خفا ہوا۔ ماہی نے شانش کھا دی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم لوگ کہو۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے تناؤ بھری خاموشی چھا گئی، پھر ماہی کو جیسے کچھ یاد آیا۔ ویسے نگینہ آنٹی چند دن پہلے پاکستان تھی نا، جب انہوں نے حور کو گھٹی دی تھی، پھر واپس کیوں چلی گئی؟ وہ ہر مہینے صرف 5 دن کے لیے پاکستان آتی ہیں، یہ ان کی پرانی روٹین ہے۔ تھکتی نہیں ہیں اتنے ٹریول سے؟ بیمار بھی ہیں؟ میں نے بھی زیاد سے یہی پوچھا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ 3 گھنٹے کی تو فلائٹ ہے، اور نگینہ آنٹی کو اپنا لاہور والا گھر بہت عزیز ہے، یہاں کے وہ بہتر محسوس کرتی ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نرمی سے ماہی کو دیکھا۔ خالہ جب بھی آئیں موسٹ ویلکم، لیکن میں اپنی زندگی کے فیصلے اپنے رشتہ داروں کی فلائٹ شیڈول کے مطابق نہیں کر سکتی ماہی۔
मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। उसका अंदाज़ नरम मगर दो टोक था। माही का सर इस बात में हिल गया। जब माला फ़ैसला कर ले तो कोई चीज़ उसको इस फ़ैसले से नहीं हटा सकती थी। क्या मैंने दुरुस्त फ़ैसला किया? इस दोपहर सफूरा और वो एक रेस्टोरेंट में आमने-सामने बैठे थे। इनके ऊपर शीशे की छत बनी थी जिस पर जगह-जगह बोगनवेलिया के गुलाबी फूल नज़र आ रहे थे। दीवारें भी शीशे की थी जो कहीं से ऊंचे पौधों से ढकी थी और कहीं से सरमा की नम धूप को अंदर आने का रास्ता दे रही थी। उसने सफूरा से ये सवाल अपने लंच को देखते हुए पूछा था जो उसके सामने अनछुआ रखा था। सफूरा अपने लंच की तस्वीर खींच रही थी क्योंकि वो अपना खाना इंस्टाग्राम के अजनबी को दिखाना फर्ज समझती थी। इस सवाल पे चौंक के चेहरा उठा के उसे देखा। माला की आंखें प्लेट पे झुकी, सियाह बाल चेहरे के दोनों तरफ में गिर रहे थे। सब्ज कार्डियन के अंदर झाँकते सफ़ेद कुर्ते के गिरेबान पर सियाह फाख्ता वाला लाकर चमक रहा था। कुछ था कशमाला के चेहरे पर जो उदास कर देने वाला था। बेहतरीन फैसला है। ज़ियाद के बारे में जितना मैंने तुमसे सुना है वो एक शानदार इंतखाब। अपने फैसले पे शक क्यों कर रही हो? सफूरा ने छुरी कांटा प्लेट में चलाना शुरू कर दिया। कहीं मैं जल्दबाजी से काम तो नहीं ले रही? यानी 2 माह में शादी? उसने निगाह उठा के सफूरा का देखा। वो कांटे को चिकन फ्ले में गाढ़े छुरी से एक टुकड़ा काट रही थी। इंतज़ार किसका करना है? अम्मी रही नहीं, यहाँ रह के क्या करोगी? दुबई जाओ और नई ज़िंदगी शुरू करो। फिर उसका चेहरा देखकर सफूरा ने हाथ रोका और एक गहरी सांस ली। तुम बताओ माला, तुम जल्दबाजी क्यों कर रही हो? और वो जैसे एकदम से बोलने लगी, क्योंकि मैं लाहौर में मज़ीद नहीं रुकना चाहती। यहाँ हर तरफ माँ की यादें हैं, डिप्रेशन है, एक तवील अरसे से कोई मेरा ताक़ुब करता आया है। मैं इस सबसे पीछे छुड़ाना चाहती हूँ। अब तो वो ताक़ुब नहीं कर रहा ना? सफूरा ने फिक्रमंदी से उसे देखा। उसने नफ़ी में गर्दन आया। नहीं, क्योंकि मैंने इसका ताक़ुब छोड़ दिया है। ज़हन के पर्दे पर बाथरूम के नल वाला वाक़या लहराया और स्टूडियो में पड़ा कार्टन जिसमें उसने अमल के मुतालिक जमा की गई मालूमात को सील बंद कर दिया था और वो बाब ख़त्म हो चुका था। मैंने दुबई में कुछ जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई भी किया है। उसने बिलाहर छुरी कांटा उठाया। फिर मसला क्या है? कुछ है मेरे अंदर जो मुझे कहता है कि ज़ियाद मेरे लिए बेहतरीन चॉइस नहीं है। वो उलझी हुई लग रही थी। क्या तुम्हें ज़ियाद से मोहब्बत है? क्या मुझे ज़ियाद से मोहब्बत है? उसने उल्टा सवाल किया। नहीं है। सफूरा ने बगौर उसकी आंखों में झांका। पता नहीं। उसने बाल कान के पीछे से सब्ज आंखों में उदासी थी। मुझे उसके लिए एक बेचैन कर देने वाली कशिश महसूस होती है, जैसे कुछ खींचता हो उसकी तरफ। वो सामने हो तो सबसे अहम वही लगता है। उसे देखते ही ख्वाहिश होती है कि जैसे जल्द मैं कोई फैसला करूं, वरना मैं उसे खो दूंगी। शुरू शुरू में मोहब्बत ऐसी ही होती है। उसने बेपरवाही से स्टैक का टुकड़ा मुंह में रखा। वाकई वो धीरे से हंसी। मैं समझी मोहब्बत मुख्तलिफ महसूस होगी। मुख्तलिफ कैसे? माला ने थोड़ी पर हाथ रखा और नज़र उठा के छत से लटकती बोगनवेलिया की बेलों को देखा। मैं समझती थी कि मोहब्बत बेचैन और जल्दबाजी करवाने वाली नहीं होगी। फिर कैसी होगी? बेचैनी सुकून का उल्ट है, खो देने का डर तहफ़्फ़ुज़ का उल्ट है। मैं समझती हूँ मोहब्बत में खो देने का डर नहीं होगा, सुकून होगा, तहफ़्फ़ुज़ होगा। वो कार की पिछली सीट पे बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी और कैब खामोशी से ड्राइव कर रहा था। खिड़की के बाहर कनाल के साथ लगे दरख्त भागते दिखाई दे रहे थे और हर तरफ खामोशी थी। मैं समझती थी मोहब्बत कंफर्टेबल कर देने वाली, आंखों की ठंडक हो जैसे, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। वो कार का दरवाज़ा खोले खड़ा था और वो धूप में खड़ी थी। करीब आई तो धूप का रास्ता रुक गया। हर तरफ छाया था। मैं समझती थी कि मैं अपनी मोहब्बत के साथ जहाँ भी होंगी खुश होंगी। मुझे खुशी की तलाश में एक नए शहर जाके नई ज़िंदगी नहीं बसानी पड़ेगी। वो दोनों उस्मान की बैठक में मोड़ों पर बैठे थे। सामने मिट्टी के पेलावों में महक उड़ाती चाय और नान खताइयाँ रखी थी। वो चाय से उठते धुएं को देखते हुए कुछ कह रहा था और वो मुस्कुरा के उसे सुन रही थी। देखो, मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। मेरा तजर्बा मुख्तलिफ था। सफूरा के छुरी कांटा चलाने की आवाज़ से कोई फसूं सा टूटा। वो चौंक के उसकी तरफ मुतवज्जो। ये बेचैनी वगैरह शादी से पहले होती है। शादी के बाद ज़िंदगी में ठहराव आ जाता है। एक ही इंसान से रोज़ लड़ाई और रोज़ सुलह होती है। वो एक अच्छा इंसान है, तुम्हें खुश रहेगा। वैसे भी मर्द की शक्ल कौन देखता है? शक्ल? वो एकदम चौंकी। ज़ियाद की शक्ल को क्या हुआ? नहीं, दरअसल सफूरा गड़बड़ा गई। मेरा मतलब था तुम्हारे मुकाबले में बहुत प्रिंस चार्मिंग नहीं है, लेकिन अच्छा है, डिसेंट है और शक्लें कहाँ मैटर करती हैं यार, इखलाक अच्छा होना चाहिए। यानी तुम्हें वो नॉर्मल लगता है? वो कतरे खफा हुई और अपने खाने पर झुकी। मुझे तो वो बहुत हैंडसम लगता है। यही तो मोहब्बत है। नॉर्मल इंसान भी बहुत अच्छा लगता है। सफूरा हंसती तो वो भी मुस्कुराती। ज़ियाद थोड़ा तल्ख है। उसकी मंगेतर की मौत का ड्रामा अभी तक ताज़ा है, लेकिन मुझे यकीन है कि मोहब्बत से उसको फिक्स कर लूँगी। इस बात पे सफूरा चौंकी। फिर खंकारी। माला, कोई औरत किसी मर्द को जोड़ नहीं सकती, ना हील कर सकती है, ना फिक्स कर सकती। शादी के बाद तो बदलेगा नहीं, थोड़ा बहुत तुम्हारे तरीके पर ढल जाएगा। वेटर ड्रिंक की ट्रे उठाए उनके करीब आए और अदब से एक गिलास सफूरा के सामने रखा। गलत। मोहब्बत इंसान को बदल भी सकती है और फिक्स भी कर सकती है। मोहब्बत ही तो हील करती है। यह सबसे बड़ा मरहम होती है। मुस्कुरा के अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जो हुई। सफूरा कुछ कहने लगी थी, लेकिन इसी वक्त वेटर दूसरा गिलास रखने झुका ही था कि गिलास हाथ से स्लिप हुआ।
बहुत सा मिनट मार्गरेटा कश्माला के कंधे पर जा गिरा। अंधे हो क्या, देख नहीं रहे? सफूरा एकदम घुराए। सफूरा इट्स ओके, इसके हाथ उठा के उसे आंखों में खामोश रहने का इशारा किया, फिर नैपकिन उठाया, पुरसुकून अंदाज में अपना कंधा साफ किया। सॉरी मैम, रियली सॉरी। कमज़ोर सा बैठा घबरा कर जल्दी जल्दी माजरत करने लगा। कोई बात नहीं, दूसरी ड्रिंक ले, मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। वो नरमी से कहती उठ खड़ी। वो रेस्ट रूम से वापस आई तो देखा सफूरा के पास मैनेजर और वेटर खड़े माजरत कर रहे थे। वो हफकीसिन को डांट रही थी। इट्स ओके सफूरा, जाने दो। वो वापस बैठी, उनको जाने का इशारा किया। साफ नैपकिन गोद में बिछाया, फिर महसूस हुआ सफूरा से नाराज़गी से खो रही थी। इसे सज़ा मिलनी चाहिए थी। माला पढ़ना सीखेगा कैसे? इसने मेरा कार्डिगेन ख़राब किया है और तुम्हारी डांट ने इसका पूरा दिन ख़राब कर दिया। साबर अब अपनी अना के पीछे मैं किसी गरीब को उसकी नौकरी से नहीं निकलवा सकती। वो प्लेट अपनी तरफ खिसकाई, खाना वहीं से शुरू कर चुकी थी। अना कहाँ से आ गई दरमियान में? सफूरा खुद भी रेस्टोरेंट मैनेजर थी, उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वह जवाबन धीरे से हंसती। हंसी क्यों? कुछ नहीं, कुछ याद आ गया था। मुस्कुराहट दबाए सर झुका के खाने की तरफ मुतवज्जो होगी। उसका दिल अब हल्का फुल्का था। वो दुरुस्त फैसला कर रही थी। नामुमकिन, एकदम नामुमकिन। रूम नंबर 555 की खिड़की का ब्लाइंड ऊपर उठा था, जिसके बायस बज़ाहिर तेज़ लेकिन दर हकीकत ठंडी धूप अंदर दाखिल होने का रास्ता बना चुकी थी। सूरज किसी हमसाया औरत की ओट में था, इसलिए धूप का रुख तिरछा था। वो सिर्फ खिड़की के साथ रखे कोच तक पहुंच पा रही थी, जिस पर बीरबल फ्रिज चुपचाप गहरी सोच में डूबा था। दीवार पर लगे कागज़, मेज़ों पर बिखरे दस्ते, सब कुछ ऐसे सफाई से समेटा जा चुका था कि जैसे कुछ फैलाया ही ना हो। माहिर बैठ की टेक से कमर टकाई, टांगे लंबी की, नीम दराज था, सर पीछे तक की पत्थर, आंखें दाएं बाएं टहलते चंगेज़ पे जमी थी। नामुमकिन, कोई किसी पर मोहब्बत का जादू कैसे कर सकता है? चंगेज़ झंझला गया था, जैसे शम्स ने मेरी माँ पे करवाया था। हो सकता है तुम्हारी माँ को शम्स की कोई खूबी अच्छी लगी हो। शम्स में कोई खूबी नहीं थी। वो स्पॉट नज़रों से चंगेज़ को देख रहा था। सरकार इस जादू में माहिर है, वो किसी पे भी सहरिश करवा सकता है। सरकार का कोई ईमेल एड्रेस नहीं मिल सकता, मेरे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। सोच में डूबा बीरबल खंकारा, लेकिन कोई उसकी तरफ मुतवज्जो न था। तुम्हें कैसे मालूम सरकार इस जादू में माहिर है? चंगेज़ मशकूक नज़रों से देख रहा था। माहिर ने शानिश किया, मैंने 2 जमा 2 4 किया। इस एल्बम में मेरी माँ की तस्वीर भी थी और कश्माला की भी। मैं समझता था कि एल्बम वाली औरतों को सरकार ने मरवा दिया है या मरवाना है, इसीलिए मैं कश्माला की हिफाजत करना चाहता था, ताकि उसके साथ वो ना हो जो मेरी माँ के साथ हुआ था। लेकिन मैं गलत था। उसने चिच की आवाज़ निकाली, गोया खुद पे अफसोस किया हो। यानी एल्बम वाली औरतों पर दरअसल सरकार ने जादू किया था। बिल्कुल। उसने मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए मुख्तलिफ औरतों पर सहरिश किया था। सरकार एक ट्रॉफी कलेक्टर भी है, अपने हर शिकार का हिसाब रखता है। मैं नहीं मानता कोई किसी के दिल में अपनी मोहब्बत जादू के ज़रिए पैदा नहीं कर सकता। चंगेज़ ने नाक से मुक्की उड़ाई। दुरुस्त। उसने सर तईद में हिलाया तो वो दोनों चौंकी से देखने लगे। क्या मतलब? सहरिश कभी कामयाब नहीं होता, क्योंकि कोई इंसान जादू के ज़रिए किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। वो टेक लगाई, संजीदगी से इन सवालात के जवाब दे रहा था। लेकिन तुमने कहा सहरिश कसर करता है। सबसे ज़्यादा मायूसी बीरबल फरीद को ही थी। सहरिश इश्क नहीं होता, सहर होता है। एक कल्विजन, मोहब्बत का एक सैराब, एक मसनूई एहसास जो साहिर महबूब के दिल में जगाता है। महबूब इसको मोहब्बत समझता है और उसने थूक निकला और अपने साहिर को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है, जैसे हमारी माँ ने किया। एक ही बात है, मोहब्बत हो या इसका एहसास। एक बात नहीं है बीरबल, मोहब्बत हमेशा के लिए होती है। सहर अलविजन है। दूर से लगता है सड़क पे पानी पड़ा है, लेकिन करीब आओ तो पानी नहीं होता, सिर्फ धूप का अलविजन होता है। यानी सहर इश्क की जल्दी टूट जाता है। मैं नहीं मानता। चंगेज़ नफ़ी में सर हिलाते हुए कुर्सी पे बैठा। तुम सिर्फ जिया सुल्तान से जेलस हो। अस्पताल के इस बंद कमरे की कैद ने तुम्हारे जहन पर बुरा असर डाला। ऐसे मत कहो चंगेज़, बीरबल बुरा मान के। उसके जहन पर असर बहुत पहले से है। अस्पताल के कमरे का क्या कसूर? माहिर ने जवाबन ने बस एक नज़र से देखा और कंधे झुका दिए। वल्लाह माहिर फरीद कभी गलत नहीं होता। तुम ये साबित कर सकते हो। चंगेज़ ने टांग पर टांग जमाई, संजीदगी से उसे देखा। वो कुछ कहने लगा, लेकिन चंगेज़ ने हाथ उठा के उसे रोका। और ये मत कहना कि वो हैंडसम नहीं है। जब किसी लड़की को किसी आदमी से मोहब्बत हो जाए तो उसको हैंडसम ही लगता है। मैंने इसकी तस्वीर देखी, वो बदसूरत नहीं है। मैंने कब कहा बदसूरत है? सिर्फ हैंडसम नहीं है, वो खुद को बदसूरत समझता है, इसीलिए उसने जादू का सहारा लिया है। क्या तुम ये साबित कर सकते हो? उसने चबा चबा के अपनी बात रही। क्योंकि अगर वो वाकई जादू करवा रहा है तो तुम्हें इस लड़की को बचाना होगा। क्या कह के बचाओगे? कि वल्लाह माहिर फरीद कभी गलत नहीं होता। मैं साबित कर सकता हूँ। उसका अंदाज़ अटल था। कैसे? नंबर से। सारे खेल नंबर्स के हैं। वो पहली दफ़ा हल्का सा मुस्कुराया। उसके गाल पर लगे काट का निशान वैसे ही था, अलबत्ता चेहरे के नील करते मुंतमिल हुए दिखाई देते थे। यानी मैं इतना जानता हूँ कि सरकार एक हाई प्रोफाइल जादूगर है। उसके क्लाइंट्स पूरी दुनिया में फैले हैं और वो बाअसर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसने अबरू से पलस्तर में लिपटी टांग की तरफ इशारा किया। क्योंकि वो अमीर लोग हैं, इसका मतलब है कि सरकार अपने काम की भारी फीस लेता है। ज़ियाद ने भी दी होगी, है ना? ज़ियाद की बैंक स्टेटमेंट से अंगेज़ ने चौंका।
यहाँ यकीनन कोई मनी ट्रेल होगा। जादूगरों को अमूमन माहाना पेमेंट की जाती है। ज़ियाद के अकाउंट से हर महीने एक ख़ास रकम की ट्रांजैक्शन की जाती रही होगी। मुझे सिर्फ इस अकाउंट को ढूंढना है जहाँ वो रकम जाती होगी। क्या मालूम वो कैश थे? तो हाँ, हो सकते हैं, लेकिन तब भी हर माह अकाउंट से रकम निकलवाने का इंदराज होगा। यूँ मेरी बात साबित हो जाएगी। इसके बैंक अकाउंट्स दुबई और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में होंगे। स्टेटमेंट कैसे निकलवाओगे? चंगेज़ अब उसकी बात पे सोचने लग गया था। इसकी फ़िक्र मत करो बीरबल हंसा। हमारे पास एक ऐसा इंसान है जो किसी के बारे में कुछ भी मालूम करके दे सकता है, क्योंकि इसके हम अहम मुल्क के हर अहम ओहदों पर दोस्त मौजूद होते हैं। कौन? चंगेज़ चौंका। ज़ारा। अब सर झुका के ज़ारा को मैसेज लिख रहा था। चंगेज़ बड़बड़ा के रह गया। वैसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। बीरबल सरसरी से अंदाज में खंकारा। सरकार की फ़ीस कितनी होगी बीरबल? उसकी आवाज़ बुलंद थी। बीरबल ने फ़ौरन से हाथ उठा लिए। मजाक आ रहा था यार, फिर किसी ख्याल से चौंका। तुमने कहा सैरिश का अंजाम बहुत भयानक होता है, मगर कैसे? माइफ्री ने गहरी सांस अंदर खींची और फिर कहना शुरू हुआ। कैफ की विलानुमा इमारत के अंदर ले लाते सरसब्ज पौधे खामोशी से वर्कर्स को काम करते देख रहे थे। शबनम अपने डेस्क के साथ खड़ी कागजात के एक पलंदे पर सर झुकाए हुए थे। जब करीब आते कदमों की आहट पर चौंकी। सर उठा के देखा तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। अब्दुल मालिक फरीद लिफ्ट से बाहर आते दिखाई दे रहे थे। ग्रे सूट, सफ़ेद शर्ट, डायमंड टाई पिन और सिल्वर बालों को जल से जमाया। उनका चेहरा हमेशा की तरह बेतासुर था। शबनम एकदम सीधी हुई। निगाहों ने उनका पीछा किया, यहाँ तक कि वो सीधा ज़ारा के ऑफिस की तरफ बढ़ गए। शबनम के कतरे तजस्सुस से उसकी समत में देखने लगी। मालिक बे कैफ को इस काबिल समझे कि खुद वहाँ तशरीफ लाएं। ये हर रोज़ नहीं होता था, कुछ तो था। उन्होंने शीशे का दरवाज़ा दस्तक के साथ खोला तो अपनी कुर्सी पर बैठी ज़ारा झंझनाई हुई साथ खड़े मुलाजिम से कह रही थी, एक ढंग का खाना नहीं बना सकते तुम लोग? ले जाओ इसको। उंगलियों से नन्ही सी प्याली परे तकेली। मुलाजिम माजरत करता जल्दी से कप उठाने लगा। कहवे के चंद कतरे छलक गए। ज़ारा ने इनको आते देखा तो खामोशी। लगता था जैसे काफ़ी देर से इसकी क्लास ली जा रही हो। बगौर उसकी पेशानी के बल देखते हुए सामने आए और कुर्सी खींची। अपने शैलो इको की वजह से इसको नौकरी से निकाल लोगी क्या? साथ ही मुलाजिम को ऊपर से जाने का इशारा किया। वो जल्दी जल्दी ड्रेस मेटा बाहर गुलाब का। आप कैसे आए बाबा? उसके खुले बाल दोनों कंधों पर कर्ल्स में सेट थे। बिना आस्तीन के सफ़ेद ब्लाउजर्स पहने, जिसके गिरेबान पे सुनहरी जंजीर झूल रही थी। एक्रिलिक नाखनों को सब्ज नेल पॉलिश से रंगे वो घनी मसनूई पलकें चिपकाए बाप को देखने के बजाय कागजात अलट पलटा रही थी। माथे के बल हनूस काम थे। क्योंकि फ़ोन पर लगा तुम अपसेट हो। उसकी आंखें किसी भी तासुर से आ रही थी, जैसे फर्श की एक झील हो। झील हो। ज़ारा ने आंखें उठा के निष्कायती नज़र से देखा। माहिर से मिले आप? उसके दोस्तों ने मेरा दाखला बंद कर रखा है। अजीब लोग। नापसंदीदी से झुरझुरी। क्यों रह रही हुई इन अजीब लोगों में? वापस आ जाओ। बगौर उसको देख रहे थे। हमेशा की तरह इस दफ़ा उसने ठंडे अंदाज में हंसकर इनकी बात हवा में नहीं उड़ाई। उसने फाइल बंद की और पीछे को टेक लगाई। चेहरा नाराज़ नाराज़ सा। मैं यहाँ खुश हूँ, उसकी ज़िंदगी में तुम कहीं नहीं हो ज़ारा। पहली दफ़ा उनकी आवाज़ में दुख सबरा, जैसे बर्फ़ की झील में लटकाओ शगाओ ज़ाहिर हुआ हो और एक पतला पत्ता ऊपर तैरने लगे। मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम इसकी ज़िंदगी में कहीं नहीं हो। वाक़े को झुके और बाद रही। ज़ारा की आंखों में गुलाबी सी नमी उभरी। आप गलत हैं, वो आखिर में मेरे पास ही आएगा। तुम अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही हो। मेरे साथ वापस चलो, ताकि अपने बहनों की तरह शादी और बच्चों की ज़िंदगी ज़ाया करूँ। क्यों बाबा? आपको तो अपने जैसी बेटी चाहिए थी। तुम्हें अब तक नहीं मालूम हुआ कि मुझे कैसी बेटी चाहिए थी? वो धीरे से उठ खड़े हुए। बर्फ़ वापस चमकी। पता कहीं नीचे मंजर में धोते हुए भी दरवाजे तक पहुंचे। जब ज़ारा ने लब खोले, उसने मुझे एक आदमी की बैंक स्टेटमेंट निकलवाने के लिए कहा है, ज़िया सुल्तान। वह हैंडल पर हाथ रखे रखे मुड़े। क्या पूछना चाहती हो? क्या माहिर ये सब किसी लड़की की वजह से कर रहा है? वो बिना पलके झपकाए बाप की आंखों में देख रही थी। वहाँ सिर्फ बर्फ़ थी। हाँ, उस लड़की का नाम हलाल है। ज़रा से शान झुकाया। वो हलाल के लिए सब नहीं कर रहा। वो एकदम दृष्टि से बोली। गलत नहीं गया। कोई लड़की भी है जिसे वो लाहौर में मिला था। वो आप जानते हैं इसे। वो खामोशी से उसे देखेगी। हाथ अभी तक हैंडल पे था। सवाल यह है कि आप इस लड़की को प्रोटेक्ट क्यों कर रही हैं? उसकी गीली आवाज़ बुलंद थी। डीजी साहब की बेटी की सालगिरह है, ज़रूर जाना, वरना वो बुरा मानेगी। एक लफ्ज़ से भाग कर कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। शबनम जो तजस्सुस से इस तरफ देख रही थी, जल्दी से वायर में चेहरा छुपाए रुख मोड़ गई। अस्पताल के प्राइवेट रूम नंबर 55 में इस सुबह खामोशी फैली थी। न किसी मशीन की आवाज़ थी, न इंसान की। वहाँ कोई मौजूद न था, सिवाय बिस्तर पर टेक लगाए नीम दराज मरीज़ के। गाल पर जख्म का निशान वैसा ही था। आंख तले नील भी जामनी पड़ चुके थे। मोबाइल स्पीकर पर रखे दूसरी जानब जाती घंटी सुन रहा था। स्क्रीन पर 150 जगमगा रहा था। वो चल हमें अरफाज को देखेगा। स्क्रीन धीरे धीरे पिघलने लगी, यहाँ तक कि वो पिघली चांदी की तरह सारे पे छा गई। इस मंजरनामे से धुएं का मरगुला उठा। सफ़ेद आसमान में स्याह धुआं और वो वहीं रकम हो गया।
ये मंजर इस पेंटिंग में पेंट किया गया था जो बरसों पहले उस रोज़ रबीर के अपार्टमेंट की दीवार पर दिखाई दे रही थी। रबीर इस पेंटिंग तले पिछली कुर्सी पर बैठी थी, टांग पर टांग जमाए, कानों में नन्हे हीरे पहने। उनका चेहरा सपाट और सर था। माँ प्लीज़, मैं फिर से आया हूँ आपकी मिन्नत करने। मन के सामने बैठा था, क्लीन शेवर, कम उम्र चेहरा, माथे पर बिखरे बाल, आंखों तले हल्के। शम से शादी ना करें, वो आपको हर्ट कर देगा। उसने दोनों हाथों से उनका हाथ थाम लिया। लहजे में नजाहत थी, बेचैन निगाहें उनकी सर्द आंखों पर जमी थी। तुम्हें कैसे मालूम? लहजा सर था। मैं लोगों के बारे में कभी गलत नहीं होता। शम्स सब कुछ प्लानिंग के तहत कर रहा है। वो सिर्फ आपकी दौलत की वजह से आपके साथ है। यानी तुम्हें अपनी माँ इतनी अर्जा लगती है कि कोई उसका साथ उसके अपने लिए नहीं चाह सकता। जो चाहता था उसे आपने छोड़ दिया। उसकी आवाज़ बुलंद हुई। और वही तुम्हें ये सब सिखा के यहाँ भेजता है ना? उन्होंने बेरुखी से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो इन्हें देख के रह गया। मेरे बीमार बाप के पास सिखाने के लिए वक्त नहीं है। तुम मुझे शम्स के खिलाफ क्यों कह रहे हो? तुम उसको जानते तक नहीं हो। हर कोई माई फ्रीद की बात का एतबार करता है, आप क्यों नहीं करती? दीवार पर लगी पेंटिंग का रंग सुनहरी पड़ने लगा, यहाँ तक कि वो सोने की तरह पिघलने लगी। इस पिघले सोने में एक धूप से भरी सुबह उभरने लगी। वो दोनों दिल्ली गेट के सामने खड़े थे। वो माथे पर हाथ का छज्जा बना के उसको देख रही थी। क्या आप मुझ पर भरोसा करती हैं? हाँ। वो आपको हर्ट करेगा। तुम मुझे ज़ियाद के खिलाफ क्यों कर रहे हो? सब आंखों में शख्स था, तुम उसको जानते तक नहीं हो। धूप ठंडी होती गई, यहाँ तक कि वो सफ़ेद होगी। माही ने आंखें खोली। वो रूम नंबर 55 में लेटा था। स्पीकर फ़ोन पर महबीना मुबीन हेलो कह रही थी। माहिर फरीद का कोई इतबार नहीं करता, लेकिन एक कोशिश करना चाहता था। उसकी आवाज़ धीमी थी। कैसी कोशिश? वही इस अचानक सी फ़ोन कॉल पर हैरान हुई थी। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ और बहन पर जादू करवाने वाला सरकार का क्लाइंट कौन है, तो कबीरा तय है, मुझे मालूम है। माहिर फरीद ने गहरी सांस अंदर खींची। तुम कई बार से इन्हीं को अपना दुश्मन गर्दानती आई हो, मगर मैं किसी और का नाम लूँ तो मान लोगी? मुझे सबूत चाहिए होगा। उसका अंदाज कतई था। माहिर के लब ओह में झुक रही। यानी तुम्हें मेरा एतबार नहीं है? हमारे ऊपर जादू करवाने वाली मेरी माँ की सबसे बड़ी दुश्मन कबीरा ताई है। मैं कैसे यकीन करूँ कि कोई और ये कर सकता है? नामुमकिन। ज़िया सुल्तान, वो एकदम बोला। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन है, तब? चल लम्हे के लिए लाइन खामोश हो। किस फिर से सिगार पीने लगे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। ज़िया सुल्तान सरकार का क्लाइंट है। माहिर साहब मेरी बात सुने। उसकी आवाज़ से छलकता गुस्सा सा समुंदर पार भी अपनी हद से सारे कमरे को देखा गया था। आपने माला को धोखा दिया, मैंने इस बात को जाने दी, क्योंकि मुझे आपकी नीयत पर कभी शक नहीं हुआ था। आपकी वजह से माला और मेरी लड़ाई हुई, इस बात को भी मैंने जाने दिया। लेकिन अब आप ज्यादती कर रहे हैं। आप उस शख्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिससे मेरी बहन शादी करने जा रही है। गुस्सा, दुख, हैरत, इसके लहजे में क्या नहीं था? मैं गलत नहीं हूँ ज़िया, तुम्हारी कहानी का विलन है वहाँ सिर्फ हरधर्मी थी। आप ये सब माला और ज़ैद की शादी रोकने के लिए कर रहे हैं। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करती है, लेकिन अगर वो इस शख्स से शादी करती है जो मेरे दुश्मन का क्लाइंट है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसे गलती करने से रोकूं। माला अपना ख्याल खुद रख सकती है। आपको मेरे या उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक मिनट फ़ोन मत रखना। वो बाकी फ़ोन रखने वाली थी जब वो तेज़ी से बोलूँ। क्या ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ लाता है? कुछ मीठा? हर दफ़ा एक ही चीज़ वो सोच सोच के कह रहा था। चॉकलेट्स, यकीनन चॉकलेट्स। अब के खामोश होने की बारी माही की थी। आपको कैसे मालूम हो? अजनबा हो इसलिए कि तुम उसका दफ़ा कर रही हो, क्योंकि वो इन चॉकलेट्स के ज़रिए तुम्हारी मुखालफत को पहले ही हमायत में बदल चुका है। मैं मज़ीद कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास सबूत लेकर आऊँ तो मान जाओगी? लाइन खामोश हो गई, जैसे वो खुद भी मुकदमे में पड़ गई। जब सबूत होगा तब बात करेंगे, ठीक है? तब तक उसकी लाई हुई चॉकलेट्स मत खाना, इनमें जादू मिला होता है। उफ़! माही ने ज़ोर से बटन दबा के कॉल काटी। उसने तुम्हारा यकीन नहीं किया। बीरबल अभी भी कमरे में आया था। फ्रिज से एक कैन निकाला और उसके सामने बैठा। मुझे मालूम था वो यकीन नहीं करेगी। वो उसका होने वाला बहनोई है। वो इसके मुकाबले में मेरी क्यों सुनेगी? फिर उसे ये सब क्यों बताया? ताकि उसके दिल में शक का बीज डाल सकूं और लापरवाही से शानुज कर वो ये ना कह सके कि मैंने उसे वार्न नहीं किया था। उसने मोबाइल एक तरफ डाल दिया। बीरबल जो कैन लपो तक ले जा रहा था रुक के उसे देखने लगा। बस, तुम मज़ीद कुछ नहीं करोगे? नहीं, अब जो रुकना है उन्होंने खुद करना है। उसने साइड टेबल पर रखी किताब उठा ली और बुक मार्क लगा सफ़ा खोला। वो लड़की एक टाल टार को नॉन सो हैंडसम विलन से शादी करने जा रही है। तुम उसको बचाओगे? नहीं, कोई इंसान किसी को नहीं बचा सकता। उसे अपने आप को बचाना है और मुझे अपनी बहन को ढूंढना है। मालिक दुरुस्त कहता था। मेरे जज्बात दरमियान में नहीं आने चाहिए थे। वैसे भी सहरिश कभी कामयाब नहीं होता। वो किताब खोल के चेहरे के सामने कर चुका था। बीरबल ठहर के उसे देखने लगा। क्या मतलब? तुमने खुद कहा था कि जादूगर किसी पर भी सहरिश करवा सकते हैं। हाँ, ये नहीं कहा था कि वो कामयाब होता है, बल्कि उसे पढ़ते हुए सफ़ा पटा है। सहरिश का अंजाम वो नहीं होता जो तुम सोच रहे हो। उसके लब हिल रहे थे और नीलज़दा आंखें सफ़े पर थी। 2 माह बाद वो एक सर्द और तारीक कमरा था। इसमें कोई फर्नीचर न था सिवाय एक पलंग की। माला इस पलंग पर बैठी थी, घुटने सीने से लगाए, खौफ से चौखट को देखती हुई। चौखट पर दरवाजे की जगह एक पर्दा लगा था।
پردہ دھیرے دھیرے ہوا سے لہرا تھا، اس کی خوفزدہ آنکھیں پردے پر جمی تھی۔ دفتر پردے کے پیچھے سے ایک ہاتھ نکلا، مہمی سا بوڑھا ہاتھ۔ اس نے پردہ مٹھی میں دبایا، وہ اس کے سیاہ لمبے ناخن دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھٹنے مزید سینے سے لگائے، خود کو اپنے ہی بازوؤں میں لپیٹا۔ ہاتھ اب پردہ سرکار کا تھا، ایک ایک انچ، ایک ایک سانس۔ پھر اس نے سر نکال کے اندر جھانکا۔ یہ وہی بچہ تھا، وہی منحوس بچہ جس کے کان لمبے، سر بڑا اور گول چہرہ تھا، بال غائب اور آنکھوں کی جگہ سیاہ گھڑے تھے۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکرایا، کھوکھلی آنکھیں چمکنے لگی۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ جاگی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں تھی، بھاری کمبل اوپر ڈالے، نیم گرم کمرے میں کسی دوسرے کی موجودگی کے بغیر۔ اس نے کمبل اوپر سے اٹھایا، اپنی گردن کو چھوا، سارا وجود پسینے میں تر تھا۔ اس کی انگلیاں کپکپا رہی تھیں، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سب کچھ نارمل تھا سوائے اس کے۔ اس نے پیر نیچے اتارے اور آگے بڑھ کر بتی روشن کی۔ ایک دم سارے میں روشنیاں سی پھیل گئی۔ کمرے کے کونے میں شاپنگ بیگز کا ڈھیر لگا تھا، گو کہ وہ سلیقے سے رکھے تھے لیکن بہت جگہ لے رہے تھے۔ وہ ننگے پیر چلتی سنگار میز تک آئی، اپنا عکس دیکھا۔ اس کا چہرہ بے داغ تھا، سفید اور خوبصورت، سب آنکھیں البتہ خوف سے بھری تھی۔ آئینے کے کونے میں چند اسٹیکی نوٹس لگے تھے، ان پر کرنے کے کام لکھے تھے۔ چند کاموں کو لائن لگا کر کاٹ دیا گیا تھا، باقی ویسے ہی تھے۔ نکاح کا جوڑا پک کرنا ہے، ویڈنگ رنگ خریدنی ہے، اسے مزید کام نہیں پڑے گے۔ نظریں نیچے پھسل گئیں۔ میز پر سامنے نکاح کا کارڈ رکھا تھا، سفید کارڈ پہ سنہری رنگ سے عبارتیں لکھی تھیں۔ کارڈ کے اوپری حصے پہ ایک بیبی پھول چسپا تھا، ننھا سا پھول۔ اس نے انگلیاں پھول پہ پھیری، نیچے نکاح کی تاریخ نظر آ رہی تھی۔ آج سے ٹھیک 10 دن بعد زیاد اور اس کی شادی تھی۔ صرف نکاح کا فنکشن ہونا تھا اور اسی سے ہم رخصتی۔ گزشتہ 2 ماہ سے شادی کی تیاریوں کے لیے بازاروں کے چکر لگاتے لگاتے اس کے ذہن نے وہ سب فراموش کر دیا تھا۔ وہ احساس کہ کوئی تعاقب کار ہے، کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، وہ سب اسے بھول گیا تھا۔ وہ واقعات ہونے بھی ختم ہو گئے تھے۔ اب نہ کوئی خون کے چھینٹے تھے، نہ کھلتے بند ہوتے پانی کے نل۔ زندگی سکون میں تھی۔ اس نے بوڑھے جادوگر کا پیچھا چھوڑ دیا تھا اور یقیناً اس نے بھی مالا کا پیچھا تر کر دیا ہوگا۔ لیکن آج کچھ نیا تھا۔ کئی ماہ بعد وہ خواب پھر سے دکھائی دیا تھا، وہی منحوس بچہ، چیلنجنگ، لیکن وہ اس کے قریب نہیں آ رہا تھا، جیسے فاصلے پر گھات میں بیٹھا ہو، کسی شے کا منتظر۔ اپنے عکس کو دیکھتی اس کی نظریں گردن میں جھولتی چین پر ٹھہر گئی، جن میں سیاہ فاختہ پروئی ہوئی تھی۔ اس نے انگلیوں سے فاختہ کو تھاما اور آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کھینچی۔ پھر جب وہ سانس باہر خارج ہوئی تو اس کا خوف کم ہونے لگا۔ صرف 3 سانسیں کشمالہ مبین کو پرسکون کر سکتی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ بیڈ پہ بیٹھی، فون کان سے لگائی، زیاد کو اپنا خواب سنا رہی تھی۔ زیاد اسے ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر اسے دوبارہ برے خواب آنے لگے تو وہ اس سے شیئر ضرور کرے گی، شاید وہ دونوں مل کے اس کا کوئی مطلب نکال سکیں۔ یقیناً کبیر آنٹی پھر سے شروع ہو گئی ہیں۔ زیاد نے سنتے ہی تبصرہ کیا، ہمارے خاندان میں جادو کے لیے وہی مشہور ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی تھی، ایسا نہیں ہو سکا، اس لیے اب وہ میرا اور آپ کا رشتہ ختم کروانے کے لیے پورا زور لگائیں گی۔ نکاح میں 10 دن رہ گئے ہیں، ایک دفعہ نکاح ہو جائے تو ان کے جادو نہیں چل سکیں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، زیادہ درست کہہ رہا تھا، یہ سب کبیرہ طے کری اور اگلے 10 روز تک کرتی رہیں گی، اسے تیار رہنا۔ تو اس نے ایک نظر کمرے میں رکھے شاپنگ بیگز کو دیکھا، سب کچھ پرفیکٹ تھا، سوائے چہرہ موڑ کے بیڈ کی دوسری سائیڈ کو دیکھا جو خالی تھی، سوائے اس ایک کمی کے جو اب تک پوری نہیں ہوگی، ماں نہیں تھی۔ لیکن نگین آنٹی تو تھی نا، وہ بھی ماں کی طرح بیمار تھی، وہ ان کی خدمت کر کے ان میں اپنی ماں ڈھونڈ سکتی تھی، اور اداسی سے مسکرا دی۔ لاہور کے اسمان پہ پھیلی گدلی اسموکی نے مبین منظر کی کھڑکیوں کو دھندلا دیا تھا۔ آنسوں سے سجے اسٹوڈیو کی کھڑکی کے اندر شام کی مناسبت سے سفید بتیاں جلی تھیں اور چند نفوس اندر کام کرتے دکھائی دیتے تھے۔ ایک چوکی پہ مالا بیٹھے ایک بڑے سے چوکور فریم پر سر جھکائے ہوئے تھے، جس کے اوپر ایک ریشمی کپڑا کھینچ کے لگایا گیا تھا۔ اس پر جگہ جگہ سفید آؤٹ لائن سے کچھ پھول بنائے گئے تھے۔ وہ چھوٹا برش انگلیوں میں تھامے احتیاط سے پھولوں میں رنگ بھر رہی تھی۔ فریم کے اس پار وہی پٹھان بچہ بیٹھا تھا، چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے، وہ ناخوشی سے ریشم پہ ابھرتے پھولوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہر پھول کے آدھے حصے میں سفید رنگ بھرا تھا اور باقی آدھا خالی تھا۔ یہ اچھے نہیں لگ رہے مالا باجی، کوئی مسئلہ ہے؟ مالا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ ماتھے پر سبز ریشمی رومال باندھے اور بالوں کو جوڑے میں لپیٹے ہوئے تھی، حسب معمول ایک گال پر پینٹ کا دھبا تھا اور انگلیاں بھی رنگین ہو رہی تھیں۔ رنگ سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں طوطی۔ اس نے دوسرا برش اٹھایا، سرخ پلیٹ میں ڈبو کر پھول کے خالی حصے کو بھرنا شروع کیا۔ اس بچے کا اصل نام نہ جانے کیا تھا، لیکن وہ خود کو طوطی خان کہتا تھا، اور اسی وقت اس کی آنکھیں تحیر سے طوطے کی طرح پھیل گئی۔ واہ! سب ساڑی کے کپڑے پر سرخ اور سفید پھول بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سرخ رنگ یا درا جانے والا رنگ ہے۔ وہ برش کو پھر سے سرخ رنگ سے رگڑی تھی جب وہ دور کہیں یادوں میں سے ایک آواز ابھری۔ اس کے ہاتھ سست ہوئے، لیکن اس نے سر جھٹک دیا، اسے اب سر جھٹکنے کی عادت ہو چکی تھی۔ نئی ای میل کے ٹونے سے متوجہ کیا تو اس نے برش رکھا اور فون اٹھاتے ہوئے کال پر آئی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ سرخ دھبا کان کے قریب لگ گیا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں ای میل پڑھتے ہوئے بے یقینی اور خوشی سے چمکنے لگی تھیں۔ مالا، تمہیں خالہ بلا رہی ہیں، کوئی بات کرنی ہے؟ ماہی نے چوکھٹ میں آ کے دروازہ بجایا تو اس نے خوشی سے تمتماتا چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ مجھے دبئی میں جاب مل گئی ہے۔ اس کے گال گلابی ہو رہے تھے۔ ایک دوست کی کزن کا ریسٹوراں رینوویٹ ہو رہا ہے، میں 1 ماہ بعد جوائن کر سکتی ہوں۔
मुबारक हो, माही सोच सोच के कहने लगी। लेकिन इतनी जल्दी अभी शादी भी नहीं हुई और जॉब। बच्चा बारी बारी दोनों के चेहरे दिलचस्पी से देख रहा था। मैं शादी इसीलिए करी हूँ ताकि एक नए शहर में नई ज़िंदगी शुरू कर सकूँ। जब इस ज़िंदगी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। खाला से कहूँ मैं आ रही हूँ, मुतमईन थी। नीचे आई तो समर जहाँ हाला लाउंज में ही बैठी थी। वो होरे जहाँ जैसी ही दिखती थी। सब आंखें सुर्ख और सफ़ेद रंगत, अलबत्ता जिस्म मुतवाज़न था। मोटापा नहीं चढ़ा था। अमेरिका में रह के खुद को फिट और जवान रखे हुए थी। बाप कट बाल हेयर बैंड से पीछे कर रखे थे। वो बड़े सोफे के किनारे पे बैठी थी। माला आके दूसरे किनारे पे बैठी और नरमी से पूछने लगी, आपने बुलाया था? खाला। समर जहाँ ने एक नज़र से देखा। वो सियाह ट्राउज़र और लंबी कमीज़ पर ढीला ढाला कार्डिगेन पहने, जोड़ा बनाए, माथे पर सब्ज़ रुमाल लपेटे बैठे साथ किसी ने देख ली थी। समर जहाँ 2 रोज़ पहले अमेरिका से आई थी और जेट लेग की वजह से ज़्यादा वक्त आराम करती रही थी। खुल के बात करने का मौका आज मिला था। माला, तुम इस रिश्ते से खुश हो? उन्होंने अल्फाज जोड़े। माही भी खामोशी से सामने वाले सोफे पर आके बैठ गई। ज़ाहिर है मैं खुश हूँ। क्यों? उसने चौंके ने देखा, फिर माही को। माला बेटे, मेरा नहीं ख्याल ज़िया तुम्हारे लिए एक अच्छी चॉइस है। वो इसकी तरफ पहलू मोड़ के बैठी। चेहरे पे तफक्कुर था। उनकी फैमिली हमसे बहुत मुख्तलिफ है और ये नगीना उनके लहजे में नापसंदीदी ऊपर है। वो मुझे कभी भी पसंद नहीं रही। माही ने गर्दन बिल्कुल झुका दी। वो इस वक्त माला से कोई नई लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती थी। नगीना आंटी बहुत अच्छी और नेक खातून है। उसको बहुत बुरा लगा। हर लड़की की तरह अपने होने वाले ससुराल की बुराई उसे अपनी बुराई लगी थी। अल्लाह माफ़ करे, लेकिन लोग जैसे नज़र आते हैं वैसे होते नहीं है। खाला ने नाक से मकड़े। नगीना आंटी आपको क्यों नापसंद नहीं है? क्यों नहीं पसंद? वो बगौर खाला के चेहरे को देख रही थी, क्योंकि वो बहुत चालाक औरत है। हम एक ज़माने से उसको जानते हैं। वो तुम्हारी माँ को भी पसंद नहीं थी। नहीं तो वो इतने महीने से हमारे घर आ जा रही है। माँ ने हमेशा उनको वेलकम किया। उनका लहजा दफाई था। नहीं माला, खाला ठीक कह रही है। माँ को पहले नगीना आंटी पसंद नहीं थी। ये तब्दीली ईज़ा की शादी से आई है। माला माही कंगारी। ईज़ा उसकी वो कज़न थी जिसकी शादी अटेंड करने वो कैब के साथ इस्लामाबाद से लाहौर आई थी और फिर लाहौर से निकल नहीं सकी। इसी शादी में वो बराह रास्त पहली दफ़ा ज़िया तो नगीना आंटी से मिली थी। इससे पहले मामू के टहरे से उसने ब्राउनी खाते हुए इनको सिर्फ देखा था। इधर माही कह रही थी, ईज़ा की शादी पे नगीना आंटी लंबे अरसे बाद माँ से मिली थी। उन्होंने सबके सामने कबीरा ताई से मिलने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से माँ का दिल उनकी तरफ से नरम हुआ। और फिर माँ ब्रेन ट्यूमर की मरीज़ा थी। इनका दिमाग ठीक से फैसले नहीं कर पा रहा था, वरना उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में मुझे हमेशा यही बताया था कि इन्हें नगीना आंटी नहीं पसंद। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। उसने बेचैनी से पहलू बदला। गुफ्तगू मुश्किल होती जा रही थी, क्योंकि तुम्हारी माँ की गिबत की आदत नहीं थी। उसको कोई पसंद ना होता तो उससे दूर हो जाती थी, खामोशी से, तुम्हारी तरह। खाले ने बगौर उसे देखा। उसके साथ तन गए थे। उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे नगीना आंटी है तो अच्छी। माही सोच के बोली, हमारी माँ को बहुत से लोगों से मसले होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग बुरे हों। नगीना आंटी ने हूर को इतना प्यार किया था, फिर उसे घुट्टी भी दी। हम नगीना आंटी को क्यों डिस्कस करें? मेरी शादी ज़ियाद से हो रही है। उसने ज़ोर देकर याद दिलाया। ज़ियाद एक बहुत आम सा इंसान है बेटा। इसमें कोई ऐसे हीरे नहीं जुड़े कि तुम इसके बारे में सोचो भी। ऊपर से उसके माँ बाप का अजीब टॉक्सिक सा रिश्ता है। शादी से पहले वो हमेशा देखते हैं कि मर्द किन हालात में बड़ा हुआ है। टॉक्सिक हालात में बड़े होने वाले मर्द टॉक्सिक होते हैं। आप बात को देखो, अगर आज वो माही के साथ अच्छा है तो उसके लिए घर के माहौल का सेहतमंद था। हर इंसान के अंदर बचपन का ट्रामा होता है। खाला, हम भी तो बगैर बाप के बड़े हुए हैं। क्या हम टॉक्सिक हैं? शादी के बाद 2 लोग एक दूसरे की महरूमियों को पूरा करते हैं। उसके माँ बाप की सज़ा उसको क्यों दें? वो समझ नहीं पा रही थी। बेटे, तुम्हें ज़िया से अच्छा रिश्ता मिल सकता है। अच्छा कौन? वो चौंकी। पहली दफ़ा उसे खाला की बात समझ में आने लगी। उन्होंने गहरी सांस ली। चंद लम्हे का वक्फा किया। अब की माही भी चौंकी। कुछ था जो वो नहीं जानती थी। मेरे जेठ का बेटा है, फाइकबाद का फर्स्ट कज़न, अमेरिका में होता है, डॉक्टर है। उसकी माँ ने मुझे तुम्हारे लिए कहा है। बहुत अच्छा और बहुत काबिल लड़का है। फाइक की तो पिछले साल डाइवोर्स हुई है खाला। मैं यकीनी से बोली, डाइवर्स का क्या है? वो होती रहती है। मत पे कोई धब्बा थोड़ी लग जाता है। खाला ने उसे घूरा। वो अपनी जगह बिल्कुल छल होगी। खाला उसको ज़ियाद के मुकाबले में एक तलाकशुदा आदमी का रिश्ता कबूल करने के लिए कह रही थी, वो भी उसकी शादी से 10 दिन पहले। तलाक को लोगों ने टैबू बना लिया। ऐसी बुरी चीज़ नहीं होती तलाक। टॉक्सिक रिश्ते में रहने से बेहतर है बंदा तलाक लेकर अलग हो जाए। फाइक की बीवी ही कोई साइको थी। शुक्र है उसने जान छुड़ा ली। वो हर लिहाज से ज़ियाद से बेहतर है। तुम उससे बात करके तो देखो। खाला उसे फिर से समझाने लगी। उसने कुछ कहने के लिए लब खोले। बहुत कुछ अंदर एकदम से बोलने लगा, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा। बस गहरी सांस नाक से अंदर खींची और लबों से खारिज कर दी। सीने में उबलता लावा ठंडा हो गया। मैं जानती हूँ आप मेरी भलाई चाहती है खाला। उसने नरमी से इनके हाथ थामे। आपसे पहले मुझे कई कज़न ने भी यही कहा है कि ज़्यादा मेरा जोड़ नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक वो एक अच्छा इंसान है। फिर शादी ऐसा जो है जिसे मैं अपनी मर्ज़ी से खेलना चाहती हूँ। अगर ज़ियाद एक गलती है तो ये गलती मेरी होनी चाहिए। किसी इंसान की गारंटी नहीं होती, कुछ शादी के बाद कुछ भी निकल सकता है। ज़िंदगी इतनी कीमती है कि इसमें तजर्बे नहीं करने चाहिए। माला खाला ने अफसोस से देखा। मैं नहीं समझती कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये गलती है तो कम अज़ कम ये मेरी गलती होगी।
उसने इसी नरमी से अपना हाथ उनके हाथ से लाता ली और उठ खड़ी। खाला सियासत से उसे देखेगी। माँ नगीना आंटी को क्यों पसंद नहीं करती थी? माला के जाने के बाद माँ ही सोच में गुम बोली, क्योंकि तुम्हारी माँ अल्लाह का बहुत जिक्र करती थी, और जो बहुत जिक्र करने वाले होते हैं ना, इन्हें इशारे मिल जाते हैं अंग्रेज़ी में, जिससे तुम वाइब्स कहती हो। फिर कुछ यादा ने बेखफकी से माही को घूरा, और तुमने भी पकड़ के इसी औरत से बेटी को घुट्टी दिलवा दी। वो उन्होंने खुद कहा था। वो गड़बड़ा के खड़ी हुई। उनका फीटर लेने वो किचन तक आई तो देखा काउंटर पर ज़ियाद की लाई चॉकलेट्स का एक बॉक्स साथ खुला रखा था। जहन में माहिर का कहा फिक्रा गूंजा, लेकिन उसने सर झटका एक चॉकलेट निकाल कर रैपर उतारने लगी। खामखा जेलस है वो। रैपर डस्टबिन में उछाला और चॉकलेट मुंह में रखती हुआ आगे बढ़ गई। कैफ की बलाई मंजिल पर बने ऑफिस कैबिन उसे खाली इस सुबह खाली थे, क्योंकि सारा अमला लिफ्ट के सामने हजूम की सूरत खड़ा था। इश्तियाक भरी नजरें धाती दरवाजों पर जमी थी। सीलम में लिफ्ट की घंटी बजी, दरवाजे अलग हुए और माहिर फ्री नजर आया। स्याह सूट के अंदर सफ़ेद शर्ट पहने, गीले बाल पीछे को जमाए वो वैसा ही था, सवाए रुखसार पर लगे जख्म के निशान के, या फिर कोहनी के साथ लगी बैसाखियों के। खुश आमदीद माहिर पे पुरजोश इस्तकबाल, हाफिज़ वापसी की मुबारक से तियाबी की दुआएं, एक साथ बहुत कुछ उसकी तरफ आया। माहिर ने बदिक्कत मुस्कुरा के सर को खाम दिया, फिर निगाह में कुछ चटका। मेन हाल की दीवार के साथ फूलों की सजावट की गई थी, साथ ही कुछ स्वीट्स रखी थी। ये सब किसने किया है? उसने शबनम की तरफ देखा जो सबसे आगे थी। मुस्कुरा के सीने पर हाथ रखा। मैंने गुड, ये फजूल खर्ची तुम्हारी तनख्वाह से कटेगी। एक बार हम नज़र उस पर डालकर वो बैसाखी के सहारे आगे ही बढ़ा। और आप सब अपनी नशिस्तों पर जाए, आपको कंपनी इस वक्त के लिए पे करती है। वह सब मुस्कुराहटे थे बाई इधर उधर बिखर के, दरमियान में रास्ता छोड़ दिया। वह आगे बढ़ा। शबनम मुस्कुरा के उसे ऑफिस तक जाते देखती रही। जब वो अंदर चला गया तो वो स्टाफ की तरफ पलटी और हथेली पिलाई। मैं शर्त जीत गई। माहिर बे को एक्सीडेंट भी मशीन से इंसान नहीं बना सका। मेरे पैसे। मुस्कुरा के आंखें घुमाई और बहुत सी याद बेख्तियार जेबों की तरफ बढ़ गई। वो ऑफिस में दाखिल हुआ तो ज़ारा पहले से अंदर मौजूद थी। वेटर्स चेयर पर बैठी हुई इसी की मुंतजर थी। क्या तुम्हें इतनी जल्दी ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए था? वह हफ्के से कहती खड़ी हुई। माही ने जवाब नहीं दिया। वो बैसाखी से लंगड़ा के चलता कंसोल टेबल तक आया जो खिड़की के करीब थी। खिड़की में रखा कैक्टस का पौधा सूख सुखड़ चुका था। माही ने उसे नहीं देखा। वो सर जगह दराज खोल रहा था। बैसाखी पर गिफ्ट डीली हुई तो वो फिसल के नीचे जा गिरी। मुझे मेरा जवाब मिल गया। वो करीब आई, झुक के बैसाखी उठाई, फिर सीधे होते हुए नाराज़गी से उसे देखा। तुम वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते थे, मैं तुम्हें हर चीज़ घर पर मुहैया कर देती। वो डोपामाइन उसका किया। वो मुस्कुरा के दराज से लाइटर गा रहा था। ज़रा उसे देख के रह गई। जो डोपामाइन रश मुझे चाहिए वो घर में बैठे नहीं मिल सकता। उसने लाइटर जलाया, कतार में रखी कैंडल्स में से एक का ढक्कन उठाया। सैंडलवुड। डोपामाइन इंसानी दिमाग में पैदा होने वाला एक केमिकल है जो इंसान को अच्छा महसूस करवाता है और अपने पसंदीदा कामों के दरमियान में रिलीज़ होता है। लाइटर के शोले ने मोमबत्ती के धागे को छुआ और उसने आग पकड़ ली। पल भर में मोम पिघलने लगा। तुम हमारे बारे में सोचते हो कभी? वो मेज़ तक आ रहा था जब ज़ारा धीरे से बोली। वो चौंका। बैसाखियाँ कोट स्टैंड के साथ रखी, फिर एक से फिसल गई। वो नासमझी से उसे देखा। वो अभी तक दूर कंसोल टेबल के साथ खड़ी थी। बालदार बाल शानों पर गिर रहे थे। बुराक सफ़ेद मरी ड्रेस में मलबूस, गिरे पान पर जूती सुनहरी जंजीरें, नाखनों पर फिरोजी नेल पॉलिश, जो सफ़ेद लॉन्ग बूट्स पहने हुए बज़ाहिर हमेशा जैसी ही थी, लेकिन कुछ था जो बदला हुआ था। उसकी आंखों में मलाल था। शायद गिला। वो फैसला नहीं कर सका। क्या मतलब? कभी तुम हमारे बारे में सोचती हो? हमारी वो कदम कदम चलती आगे आ रही थी। सैंडलवुड की खुशबू मोम की कैसे आज़ादों को सारे में फैलने लगी। वो टेक लगाई। आंखों की पुतली से थोड़े गौर से उसे देखा गया। मैं जो लंदन से आई हूँ इस कंपनी के लिए, और ये लोग जो दरवाजे की तरफ इशारा किया, दिन रात इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। अगर कैफ डूबा तो हम सबके कैरियर्स का क्या बनेगा? तुम काफ़ी दिन से मुझे अपसेट लग रही हो। क्या हुआ है? वो कदर हैरान था, क्योंकि तुम इस कंपनी को वक्त नहीं दे रहे। वक्त देने ही ऑफिस आया हूँ। और वो मुतअज्जिब हुआ। तुम अभी कह रही थी कि मुझे घर पर होना चाहिए था। तुम कैफ पर काम करने ऑफिस नहीं आए। मुझसे पूछने आए हो कि मुझे ज़िया सुल्तान की बैंक स्टेटमेंट में क्या मिला। वो मेज़ के किनारों पर हाथ रखे खड़ी बहुत बेबसी भरी बेरहमी से उसे देख रही थी। माहिर बे ने ओ कह कर एक गहरी सांस खारिज की। क्या मिला? मुस्कुरा के सामने रखा लैपटॉप खोला, दूसरा हाथ बढ़ा के डेस्कटॉप ऑन किया। बैक पर बहुत सी स्क्रीन चल उठी। तुम्हें अपने इस जुनून के अलावा किसी और की फिक्र नहीं है? माहिर, वो जुनून नहीं है, वो मेरी बहन है। वो एकदम दृष्टि से बोला। मुस्कुराहट गायब हुई और माथे पर बल पड़ गई। वो बहन जो मर चुकी है, उसकी तलाश में हम सब तुम्हारे आलाकार बने हुए हैं। रही ज़ारा तो ज़ारा का क्या? ज़ारा इसी चीज़ में तो अच्छी है। एक कॉल करो और ज़ारा काम कर देगी। फ़लाँ का पता कराओ, फ़लाँ की बैंक स्टेटमेंट क्लोज की आवाज़ बिकने लगी। तुम्हें आलाकार बनने से मना कर देना चाहिए था। मैं किसी और से कह देता। वो बेनियाजी से अब कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। पापा ठीक कहते हैं, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। ज़ारा क्यों सुबह सुबह मुझसे लड़ रही हो? उसने करा के स्क्रीन फोड़ की, फिर बेबसी से देखा। सर में दर्द होने लगा था। तुम में और कबीरा सरदार में कोई फ़र्क नहीं है। वो अफसोस से उसे देख रही थी।
مائی فرید کے چہرے پر ناگواری بھری جیسے کچھ کڑوا مشروب پی لیا۔ مجھے اسے کیوں ملا رہی ہو؟ کیونکہ اسی سے سب شروع ہوا تھا۔ تم نے اس کے بارے میں مجھے معلومات لینے کے لیے کہا، میں نے تمہاری مدد کر کے تمہیں مزید اس جنون کی دلدل میں دھکیل دیا۔ اسی کی وجہ سے تم بار بار لاہور جاتے ہو اور تمہارے ساتھ یہ سب بیساکھی کی طرف اشارہ کیا ہو رہا ہے۔ زرینہ فرید اس کی آنکھیں بند کر کے کن پٹیوں کو سلایا۔ میں کبیرہ کے لیے لاہور نہیں جاتا۔ میں اس کے بارے میں صرف اس لیے جاننا چاہتا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ اس کے اور میرے خاندان کے درمیان کوئی مشترکہ کڑی ہے یا نہیں، اور یقین کرو ہمارے درمیان کچھ مشترک نہیں ہے۔ میں اپنے جس دشمن کو ڈھونڈ رہا تھا اس کا کبیرہ سے تعلق نہیں ہے۔ جھوٹ مت بولو، تم میں اور اس عورت میں بہت کچھ مشترک ہے، لیکن خیر مجھے کیا؟ اس نے میز پر رکھے کاغذات کا ایک پلندہ اس کی طرف دھکیلا۔ ضیاء سلطان کی بینک اسٹیٹمنٹ۔ مت پوچھنا کہ مجھے کیسے ملی، بہت وقت لگا لیکن مل گئی۔ لہجہ چتاتا ہوا تھا اور ان میں کچھ ایسا کچھ نہیں ہے جو مشکوک ہو۔ وہ کسی ایک مخصوص رقم نہیں بیچتا، بلکہ وہ زیادہ پیسے خرچ نہیں کرتا۔ کنجوس ہے۔ مائع نے تیزی سے پلندہ اٹھایا اور نگاہ پہلے صفحے پر دوڑائی۔ کوئی بڑی رقم جو اس نے نکلوائی ہو۔ وہ صفحات پلٹا رہا تھا۔ زارا نے افسوس سے دیکھا۔ کہا نا کنجوس ہے، زیادہ پیسے خرچ نہیں کرتا۔ ایک اکاؤنٹ سے اسے ہر ماہ ایک بڑی رقم بھیجی جا رہی۔ اس نے پین سے ایک جگہ اشارہ کیا۔ یہ اس کی ماں کا اکاؤنٹ ہے، ماماز بوائز۔ ابھی تک اپنی ماں سے خرچہ لیتا ہے۔ زارا نے کندھے جھکائے۔ وہ ابھی تک خفا خفا سے تھی، لیکن وہ جیسے اسٹیٹمنٹ کی طرف متوجہ تھا۔ بہت پیسہ ہے اس کی ماں کے پاس، وہ بڑبڑایا۔ یوں ہی چہرہ اٹھا کے کچھ سوچنے لگا۔ نگاہیں کنسول ٹیبل پر جلتی سندر ووڈ کی موم بتی پر جمی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی ماں۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش۔ اس کی ماں سے میں ملا تھا کب؟ اور اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا، وہ باہر لان میں تھا۔ وہ دن جب وہ کشمالہ مبین کی نوکری چھوڑا تھا، وہ اسے کھڑکی سے اندر بیٹھی دکھائی دی تھی، سفید دوپٹے والی باوقار سی عورت۔ دونوں کی نگاہیں ملی، پھر انہوں نے اسے بلایا تھا۔ کیوں؟ کچھ منگوایا تھا انہوں نے؟ ہاں، اسے یاد آیا، اسے جائے نماز۔ وہ جائے نماز لے کر اندر آئے۔ انہوں نے شکریہ کہا۔ اس نے جائے نماز ساتھ رکھی، واپس مڑا۔ انہوں نے اسی وقت جائے نماز اٹھائی۔ ان کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا، ہلکا سا لمس، جیسے راہ چلتے بہت سے لوگوں کے ہاتھ ٹکرا جاتے ہیں، اور وہ باہر نکل آیا۔ وہ زیاد اور مالا کے رشتے کی بات کر رہی تھی، اور اس کے دل پر جیسے کھونسا سا لگا تھا۔ اسے وہ کھونسا ابھی تک یاد ہے، جیسے کوئی جسمانی تکلیف ہو۔ اسی رات وہ اپارٹمنٹ جا کے شدید بخار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی ماں کے پاس زمینوں سے ٹھیکوں کی آمدنی آتی ہے، کہو تو اس کو چیک کروں؟ وہ قدرے طنز سے بولی۔ ماہر فرید نے سر جھٹکا۔ ہوں۔ اس کی ماں بے ضرورت سے گھریلو عورت ہے، رہنے دو۔ وہ اسٹیٹمنٹ کے صفحے پلٹا رہا تھا۔ اسے جیسے شدید مایوسی ہوئی تھی۔ آخر زیاد کیسے سرکار کی فیس ادا کرتا ہوگا؟ کوئی حساب ہونا چاہیے تھا۔ نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ شاید وہ کسی اور صورت میں پیمنٹ کرتا ہو۔ وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ سر اٹھایا تو دیکھا وہ ابھی تک خفا نظر آئی تھی۔ ماہر کی پیشانی کے بال ڈھیلے ہوئے۔ زارا، وہ نرمی سے گویا ہوا، میں نے تمہیں کبھی اس شہر میں آنے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا۔ تم جب بھی واپس جانا چاہو جا سکتی ہو۔ میں تو خود غرض نہیں ہوں کہ اپنی نئی کمپنی کی وجہ سے تمہارے کیریئر کے اہم سال ضائع کرواؤں۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا، اور میں کسی کو بھی نہیں روکا کرتا، اور یہی تمہارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تم کسی کو نہیں روکتے۔ اسی وجہ سے ایک دن تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ وہ جیسے ایک دم پھٹ پڑی، پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کاغذ اس کے ہاتھ میں رہ کے وہ جہاں تھا وہیں سن ہو گیا۔ زارا کی چند لمحے پہلے کہی بات نے ایک دم نہ اسے جھنجھوڑ دیا۔ وہ درست کہتی، اسے پہلے کیوں اندازہ نہیں ہوا؟ اس نے کاغذات کا پلندہ پارے کیا اور تیزی سے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ شبنم، مجھے ایئر کیئر ٹیکر چاہیے، پروفیشنل نرس۔ اس صبح اپنے کمرے سے نکلنے سے پہلے کشمالہ مبین نے مسکرا کے آئینے پر چسپاں فہرست کی ایک سطر کاٹی تھی۔ ویڈنگ رنگ کی خریداری۔ جولرز کی سفید محل جیسی عمارت سڑک پر دور سے ممتاز دکھائی دے رہی تھی۔ سامنے پارکنگ لاٹ تھا، جس کے اندر کار کھڑی کر کے وہ چند منٹ سے داخلی دروازے کے باہر کھڑی تھی، بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی۔ دھند اور سردی بڑھ گئی تھی۔ وہ سادہ سا لباس پر بھوری لیدر جیکٹ پہنے کھڑی، ہاتھوں کو آپس میں رگڑ رہی تھی۔ قمیض کے گریبان پر فاختہ والا لاکڑ جگمگا رہا تھا۔ کھلے بال ٹھنڈی ہوا سے پیچھے کو اڑ رہے تھے۔ متلاشی نظریں پارکنگ لاٹ پہ جمی تھی، تبھی وہ اسے نظر آئے۔ چہرے پہ مسکراہٹ ظاہر۔ میں لیٹ ہو گیا؟ ضیاء سلطان مسکراتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ خالہ کی باتیں اور سارے خشیہ ہونے لگے۔ نہیں، مجھے جلدی پہنچنے کی عادت ہے، کہتے ہوئے لبوں سے دھواں سا نکلا۔ ویڈنگ رنگ آپ اپنی پسند سے بھی لے سکتے تھے۔ وہ دونوں عمارت میں ساتھ ساتھ داخل ہوئے۔ آپ کا تحفہ آپ کی پسند، وہ مسکرا کے بولا۔ ٹرٹل نیک سویٹر کے اوپر اس نے کوٹ پہن رکھا تھا جو سامنے سے کھلا تھا۔ وہ اسے آج بھی ہمیشہ کی طرح اچھا ہی لگا تھا۔ آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے چہرہ اس کی طرف جھکا کے دھیرے سے کہا، لیکن مجھے زیادہ خوبصورت تب لگتے ہیں جب آپ اونچی پونی بناتی ہیں۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ وہ تو محض کام کرتے ہوئے بناتی ہو، ورنہ مجھے اونچی پونی نہیں پسند۔ جولر کی عمارت اندر سے روشنیوں سے منور تھی۔ ٹائل سے سجی دیواریں، سیاہ اور سنہرے رنگ کے امتزاج کا ڈیکور، پاوردی سیلزمین عود کی خوشبو، ہر شے اعصاب پر رعب طاری کرتی تھی۔ ہیلو کشمالہ میم۔ میم بہت عرصے بعد آئی۔ اسے ہر طرف سے اسلام کیا جا رہا تھا۔ بوڑھا چوکیدار ویلکم ڈیسک پہ بیٹھی لڑکی سیلز میں سب کے سر جھکا کے استقبال کرنے کے انداز میں شناخت تھی، مسکرا کے سب کو سر کے خم سے جواب دے رہی تھی۔ ضیاء سامنے ہال کی طرف بڑھنے لگا جہاں طویل شوکیس بنے تھے، لیکن اس نے روک دیا۔ یہ گولڈ سیکشن ہے، ہم اوپر ڈائمنڈ سیکشن میں جائیں گے۔ مسکرا کے لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ زیاد کی مسکراہٹ کر دے پھیکی، البتہ سر ہلا دے اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ آپ ان کی پرانی کلائنٹ ہے غالباً۔
गर्दन घुमा के अतराफ का जायज़ा लेते हुए वह सरसरी सा बोला, जैसे बिल्कुल भी मुतासिर ना हुआ हो। कहते हैं कि किसी के ख़ानदानी होने का पता इस बात से लगाया जाता है कि उसका मुलाजिम और उसका ज्वेलर कितना पुराना है। कशमाला मुबीन ने मुस्कुरा कर कंधे झुका दिए। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो वैसे एतमाद से आगे बढ़ गई। उसे मालूम था उसे कहाँ जाना है। वो उसके चेहरे पर फैला गहरा आरामदासा तासुर नहीं देख सकी थी। थोड़ी देर बाद नीले मखमल के डिस्प्ले केस उनके सामने मेज़ पर रखे थे, जिनमें दर्जनों अंगूठियाँ चमका थी। छत पर नज़र रोशनियों ने हीरो की चमक को कई गुना बढ़ा दिया था। ज़ियाद ने देखा माला के हाथों में पहले से 4 अंगूठियाँ, कानों में डायमंड टॉप्स और कलाई में हीरो से चमकाता नाजुक सा ब्रेसलेट मौजूद था। इन सब की चमक उसे मज़ीद आरामदायक आ रही थी। वेडिंग रिंग सिर्फ एक सॉलिटेयर की होनी चाहिए। इस केस में सिर्फ सॉलिटेयर्स हैं और ये आपको पसंद आएगा। ज्वेलर ने एक अंगूठी उठाई और उसकी तरफ बढ़ाई। 1 कैरेट ब्लू डायमंड, ये अभी हाल ही में इम्पोर्ट में आया है। इन दोनों की निगाहें इसकी तरफ बुलंद हुई। वह एक नीली चमक वाला चकोर सॉलिटेयर था जो अंगूठी में मरसा था। बहुत खूबसूरत। वो ज़ेरे रबड़ पाई। क्या कीमत होगी उसकी? ज़्यादा अंगूठी को देख रहा था। आपके लिए? ज्वेलर ने कैलकुलेटर उठाया, चंद कीज दबाई, फिर सर उठा के आमसे अंदाज में बोला, 11 लाख, और ये 30% डिस्काउंट के बाद की कीमत है। ज़िया सुल्तान के अब्रू इस्तेजाब से उठ गया। अलबत्ता वो हल्का सा हंसी। बेहतरीन है तनवीर भाई, लेकिन मुझे बेहतरीन नहीं चाहिए। ऐसी अंगूठी की तवक्को मैं अपने फियांसी से नहीं करती, अपनी कमाई से करती हूँ। अब मुझे वो दिखाएं जो मुझे पसंद आएगा। जिला मुस्कुरा के अब इसको कुछ दूसरी अंगूठियाँ दिखाया था। काहे बकाहे के नखरे से वो ज़ियाद को भी देख लेता जो हनूसी सी चकोर हीरे वाली अंगूठी को देख रहा था। वो बेहतरीन थी। ज़िया सरगोशी में बोला, नहीं बहुत महंगी है। 11 लाख में हम हनीमून ट्रिप प्लान कर सकते हैं। माला ने एक अंगूठी डिस्प्ले कैसे निकाली और उंगली में पहनकर हाथ ऊंचा उठा के देखा। इसके बक्स में एक सादा सा सफ़ेद मोती लगा था और दाएं बाएं 2 नन्हे हीरे। ये कैसी है? वो कदरे पुरजोशी। ये तो मोती है। मुझे दिखावे के लिए 1 कैरेट नहीं लेना, वो लेना है जो मुनफरिद और खूबसूरत हो, आर्टिस्टिक हो, ऐसा डिज़ाइन जो गुफ्तगू करता हो। नहीं अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं आपको मोती की रिंग दूँ। उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। ज्वेलर की तरफ मुतवज्जह हो खामोश होगी। मैं अम्मी के साथ दोबारा आऊँगा और हम वही बेहतरीन वाला 1 कैरेट खरीदेंगे। ज्वेलर ने मुस्कुरा के सर को उस बात में हिलाया। वैसे आपके डायमंड्स असली होते हैं ना? पाकिस्तान में किसी चीज़ का भरोसा नहीं होता। वो जो मोती वाली अंगूठी वापस रख रही थी चौंके उसे देखने लगी। उसकी टोन में हल्का सा तंज था। डोंट वरी, आपको डायमंड का GIA सर्टिफिकेट साथ मिलेगा। यूँ समझ लें कि हर डायमंड के ऊपर लेज़र की मदद से इसका नंबर लिखा होता है। आप इस डायमंड को दुनिया में कहीं भी ले जाकर चेक करवा सकते हैं। ज़िया सुल्तान ने हल्के से शान उचकाई। कहा, कुछ नहीं। कुछ था तो कुछ माला मुबीन को गैर आरामदा करने लगा। वो बहुत महंगी है ज़ियाद। शादी एक ही दफ़ा होती है और शादी का तोहफ़ा एक ही दफ़ा दिया जाता है। वो दोनों लिफ्ट की तरफ जा रहे थे और उनकी सरगोशियाँ ज्वेलर साहब यहाँ से सुन सकते थे। ज्वेलर अब डिस्प्ले बॉक्स उठा रहे थे। दफ्तर ठहर के कहने लगा, सर स्कोर डायमंड का मिसेस अब्दुल बारी भी पूछ रही थी। उनको क्या कहूँ, यही के दस्तियाब है। वो इनको लिफ्ट के अंदर जाते देख रहा था, लेकिन ज़िया साहब इसे खरीदने का कह रहे थे। बेटे, उन्होंने उसके कंधे को हल्का सा थपका। डायमंड खरीदने वाले डायमंड खरीद के ही जाते हैं। वो दोनों बाहर निकले तो आसमान पर हल्की सी धूप निकली थी। धुंध कदरे गैर महसूस हो रही थी। हम अम्मी को शादी की शॉपिंग में शामिल नहीं कर सके, इसलिए सोचा कि अंगूठी इन्हीं के साथ खरीद लूँ। वो पार्किंग एरिया की तरफ जाते हुए वजाहत कर रहा था, श्योर, जैसे आपको बेहतर लगे। कैसी तबीयत उनकी? ज़ियाद ने गर्दन चुका दी। वो ठीक नहीं है। घुटन फिर से बढ़ने लगी। मैं बहुत दुआ करती हूँ इनके लिए, वो ठीक हो जाएंगे। मैं नरमी से कहती। वो जो अपन कुछ कहने लगा जब माला बाजी। ज़िया सुल्तान चौंके घूमा। सामने पार्किंग लॉट में पठान बच्चा भागता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में कॉफ़ी का डिस्पोजेबल गिलास है। ज़ियाद ने न समझे से उसे देखा। ज़ियाद, ये धोती है मेरा बहुत अच्छा हेल्पर। उसने मुस्कुरा के काफ़ी उसके हाथ से ली और प्यार से उसके बाल बखेरे। उसने शादी की बहुत सी शॉपिंग मेरे साथ करवाई है। आते हुए मैंने इसे एक फ्रेंड के रेस्टोरेंट में छोड़ आई थी जहाँ ये मेरी मर्ज़ी की काफ़ी बनवा रहा था। और हाँ, ये मेरी एक साड़ी भी अपने साथ पेंट करवा रहा है। तोती झिम के मुस्कुरा दिया और गर्दन ऊंची करके दराज काज से ज़ियाद को देखा। वो इतना पुरजोश दिखाई नहीं देता था। ये वो चॉकलेट्स वाले ज़ियाद भाई हैं ना? चॉकलेट्स? ज़ियाद चौंका। वो तीनों पार्किंग एरिया में दम तोड़ती धुन के दरमियान खड़ी थी। हाँ जी, आपकी लाई सारी चॉकलेट्स मैं ही तो खाता हूँ। तोती ने दांत निकाले। माला धीरे से हंसी। क्या मतलब? मुस्कुरा नहीं सका, सांस तक रुक गया। मैं चॉकलेट्स नहीं खाती ना, तो आपकी चॉकलेट से ही खाता है यस के भाई। और बदले में इसने मुझसे वादा किया है कि ये दोबारा स्कूल जाना शुरू करेगा। वो हंस के बोले। फिर ज़ियाद का चेहरा देखा। कुछ था उसके चेहरे पर जो कुछ माला मुबीन की मुस्कुराहट भीगी हुई। उसने काफ़ी तोती को थमाई और इससे कार में बैठने के लिए कहा। वो सर हिला के कार की तरफ भागे। क्या हुआ ज़ियाद? यानी वो तोहफ़ा जो मैं आपके लिए लाता हूँ वो आप इस बच्चे को दे देती हैं। बाजू लंबा करके उसकी तरफ इशारा किया जहाँ कार खड़ी थी। इसका चेहरा सुर्ख पड़ा था और माथे पर लकीरें थी। मैं चॉकलेट्स नहीं खाती, इसलिए। आपके नज़दीक मेरे तोहफे की कदर पसंद नहीं आए तो हैरात कर दिया। हीरे की अंगूठी पसंद आई तो इसी को दे दीजिएगा। बेबसी भरे गुस्से से उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। वो चंद लम्हे के लिए जैसे शिश्त रह की। घड़ियाल ने 12 बजा दिए थे और फेरी टेल जैसे टूटने को थी। ज़्यादा आपको मालूम है कि मैं मीठा नहीं खाती, सिवाय चॉकलेट्स के मैं आपके तमाम तोहफे इस्तेमाल करती हूँ।
یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بہت حیرت اور الجھن سے اس کو دیکھتی گئی تھی جب اسی لمحے کچھ ہوا، کچھ ایسا جو اس نے توقع نہیں کیا تھا۔ سحر عشق کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ کتاب کھول کے چہرے کے سامنے کر رہا تھا۔ بیربل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ تم نے خود کہا تھا کہ جادوگر کسی پر بھی سحر عشق کروا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کامیاب بھی ہوتے، بلکہ اس نے پڑھتے ہوئے صفحہ پلٹایا۔ سحر عشق کا انجام وہ نہیں ہوتا جو تم سوچ رہی۔ سحر کروانے والے کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ کیسی قیمت؟ وہ دونوں پارکنگ لاٹ میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اس کی نظریں زیاد سلطان کے چہرے پر تھی۔ اس لمحے کچھ ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زیاد کا چہرہ بدل گیا۔ وہ ایک بھیڑیا کا چہرہ بن گیا جس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ کشمالہ بطخ کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ خوف سے اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ سحر عشق کروانے والا ایک شیطان سے مدد لیتا ہے، اس کے ذریعے خود کو محبوب کی نظروں میں خوبصورت دکھاتا ہے، اور یوں وہ اپنا کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں دے دیتے۔ شیطان کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ کنٹرول ہے، کسی انسان کی زندگی کو کنٹرول کرنا۔ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ بدل گیا، واپس نارمل۔ کشمالہ نے پلکیں جھپکائی۔ زیاد چلا کے کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ سفید چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اور شیطان صرف وہ نہیں کرتا جو ساحر اسے کہے، وہ اپنی شرارت کا اضافہ بھی کرتا ہے، اور ساحر اور اس کے محبوب دونوں کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ وہ ان کو اپنی مرضی سے کچھ بھی دکھا سکتا ہے، ان کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، خود جادو کروانے والے کو بھی۔ زیاد، میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ اس کو دیکھے بنا تیزی سے کار کی طرف بڑھی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا، جیسے وہ اس کے پیچھے لپکا۔ کشمالہ، سوری، میری بات سنیں۔ اکثر اوقات شیاطین سحر عشق کو الٹا دیتے ہیں۔ جسے وہ خوبصورت بنا کے دکھا رہے تھے اس کو کچھ اور بنا کے دکھاتے ہیں۔ مثلاً کیا؟ مجھے نہیں معلوم۔ مختلف لوگوں کے مختلف تجربات ہوتے ہیں۔ شیطان کا مقصد صرف ان کی زندگیاں ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے سحر عشق کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان جس راستے میں داخل ہو جائے اس میں برکت نہیں رہتی۔ پلیز اسٹاپ۔ زیاد اس کے پیچھے آ رہا تھا جب اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا، ورنہ سمجھے سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں گھر جا رہی ہوں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا تھا۔ کپکپا رہے تھے۔ جب انسان اپنے محبوب کو پانے کے لیے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو وہ خود کو شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بنا دیتے ہیں، وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ مالا باجی کیا ہوا؟ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تو تھی، ہکا پکا رہ گیا۔ بولا رستے ہاتھوں سے کار سٹارٹ کر رہی تھی۔ زیاد کار کے قریب آئے۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، معذرت، سوری، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ جادو ایک سراب ہے، ایک الوژن۔ کوئی انسان کسی کے دل میں جادو سے اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتا، صرف اس کو ایک الوژن میں رکھ سکتے ہیں، اور الوژن کا سارا مسئلہ یہی ہے کہ وہ جتنا قریب آئے اتنا ہی جلدی کھل جاتا ہے۔ پھر ہماری ماں اتنے برس تک شمس کے ساتھ کیوں رہی؟ اس کا جواب میں تمہیں کسی وقت دوں گا۔ ماہر نے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ تیزی سے کار ریورس کر رہی تھی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ہاتھوں میں ہنوز لرزش تھی اور چہرہ زرد پڑا تھا۔ اس نے دیکھا تھا جو اس نے دیکھا تھا، اور کوئی بھی چیز اس منظر کو اس کے ذہن سے کھرچ نہیں سکتی تھی۔ دروازہ زوردار آواز سے بند ہوا تو نگینہ بیگم نے چہرہ اٹھایا۔ وہ اس وقت اپنے لاہور کے گھر کے ماسٹر بیڈ روم میں بیٹھی تھی۔ بستر پر چند زیورات اور کف لنکس کے ڈبے پھیلے تھے۔ ساتھ کھڑی بنگالی ملازمہ مزید ڈبے کھول کھول کر سامنے رکھ رہی تھی۔ دروازہ ادھ کھلا تھا جس کے باعث باہر سے آتے قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ ملازمہ نامحسوس طریقے سے کمرے سے نکل گئی۔ نگینہ بیگم بھی مخملی ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی جس میں سجا سٹ آنکھوں کو ہیرا کر تھا۔ انہوں نے 2 انگلیوں سے اس کا ایئر رنگ اٹھایا، تیز قدم چوکھٹ پر رکھے، پھر زیاد کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی، کچھ بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے۔ اگلے ہفتے تمہارا اور کشمالہ کا نکاح ہے۔ انہوں نے ایئر رنگ روشنی کی طرف اونچا کیا، پھر اسے الٹایا۔ اس کا سہارا ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ میری دی گئی چاکلیٹس نہیں کھاتی امی۔ وہ شکست خوردہ سا ان کے قدموں میں فرش پہ بیٹھا اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر زمانے بھر کی بے بسی رقم تھی۔ پہلے اس کی ڈیٹ آف برتھ غلط تھی، اب وہ چاکلیٹس نہیں کھاتی، پھر ہر کچھ دن بعد ایک نئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ وہ دونوں مٹھیوں میں تکلیف سے کہہ رہا تھا، نیا سہارا لگے گا۔ انہوں نے افسوس سے سر ہلایا اور ایئر رنگ کو واپس ڈبے میں ڈالا۔ امی کچھ کرے ورنہ سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ اگلے ہفتے نکاح ہے زیاد۔ انہوں نے آپ کے دوسرے ایئر رنگ کو اٹھایا تو ہاتھوں میں ذرا سی لرزش تھی۔ آپ نے سنا نہیں، وہ میٹھا نہیں کھاتی امی، اور اسی بات پر ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ میں جانتی ہوں وہ میٹھا نہیں کھاتی، سب کچھ میٹھے میں نہیں ہوتا، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب وہ دوسرا ایئر رنگ الٹا پلٹا کے دیکھ رہی تھی۔ وہ درست حالت میں تھا۔ امی کچھ کریں، کوئی دم، کوئی وظیفہ، کوئی دعا، لیکن اب کچھ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں ہوگا، خراب کرنے والے کو منظر سے ہٹا دیا ہے نا۔ وہ اب زیور واپس رکھ کے ڈبہ بند کر رہی تھی۔ زیاد نے چونک کے انہیں دیکھا، ماتھے پر بل پڑے، لب بھیج کے، وہ نہیں آئے گا نا؟ نہیں آئے گا۔ انہوں نے ایک دوسرا ڈبہ اٹھایا، بالکل پرسکون تھے۔ زیاد نے گہری سانس خارج کی، اس کی رنگت بحال ہونے لگی، پھر ان کے بوڑھے ہاتھوں کی لرزش دیکھی، چہرے پر سائے سے گزرا، کندھے ڈھیلے ہوئے۔ دعا لی آپ نے؟ اس نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے۔ میرا مسئلہ دعا سے حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے ڈبہ رکھا اور اس کو پہلی بار فرصت سے دیکھا، پھر مسکرائی اور اس کے شانے پر اپنا بوڑھا جھریوں زدہ ہاتھ رکھا۔ میرا وقت قریب ہے زیاد، مجھے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، لیکن میں اپنے بیٹے کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے کر جاؤں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ زیاد کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے ان کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور آنکھوں سے لگایا۔ سرکار، اس کے لبوں سے عقیدت سے نکلا تھا، پھر نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا۔ ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا نا امی؟ ہرگز نہیں، وہ تمانیے سے مسکرائے۔ محبت
पैदा करना गलत थोड़ी है, हम मोहब्बत फैलाते हैं, नफ़रत नहीं, और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है। उन्होंने अपना हाथ निकाला और उसके सर पर रखा। लेकिन आपको मैंने बहुत पहले ही कहा था ज़ियाद, आपको इससे नाराज़ नहीं करना, इसी तरह आप इसको खुद से मुतनफ़्फ़र कर देंगे। ज़ियाद ने पशेमानी से आंखें बंद की, उसको कॉल करे, माफ़ी मांगी और मामला दुरुस्त कर ले। याद रखें, हम मोहब्बत बांटते हैं, सिर्फ मोहब्बत। ज़िया सुल्तान ने इस बात में सिर हिला दिया, हम मोहब्बत बांटते हैं। मुस्कुराई, नरमी से इसके गाल पर हाथ रखा, फिर बगौर उसकी आंखों में देखा। आपने दवा ले ली है ज़ियाद? कम कमरे में खामोशी छा गई। वहाँ कोई आवाज़ न थी, सिर्फ नगीना बेगम की नज़र थी जो उसके चेहरे पर जमी थी। बिना किसी सहर के वो इनकी निगाहों में दुनिया का सबसे खूबसूरत नौजवान था। ज़ियाद ने नफ़ी में सर हिलाया और गहरी सांस लेकर उठकर, अब लूँगा। आपको खुशी चाहिए, आप शादी के बाद ही खुश होंगे, और खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आप दुआ ना छोड़ें। इसके जाने के बाद उन्होंने धीरे से सामने रखा बंद किया डब्बा बंद किया। चेहरे पर छाया सुकून और इत्मीनान अब रफ्ता रफ्ता गायब होने लगा था। उन्होंने ऊपर छत की तरफ देखा और ज़ेरे बड़बड़ाए, वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। चेहरे पर तफक्कुर भरी लकीरें उभरने लगी। वो घर वापस आई तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा था, टांगों में गोए जा नहीं थी। तेज़ी से लाउंज अबूर करके अपने कमरे के दरवाजे तक आई और हैंडल पर हाथ रखा ही तक कि कब से किसी ने पुकारा। माला, वो बुदक के मुड़ी सांस को ये रोकिया। क्या हुआ? माही जान कपड़े उठाए खड़ी ताज्जुब से उसे देखती। वो माही थी, सिर माही, कोई और नहीं था। कशमाला ने गहरी सांस खारिज की। तुमने मुझे डरा दिया, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या होना है? वह ज़बरदस्ती मुस्कुराई। इसी लम्हे कहीं पस मंज़र में मौसीकी गूंजी, एक मानूस सी धुन। हैप्पी बर्थडे टू यू। ना आवाज़ ना गाना, सिर्फ मौसीकी की धुन। वो चौंकी। ये म्यूज़िक कहाँ बज रहा है? म्यूज़िक? माही ने ताज्जुब से उसे देखा, फिर दाएं बाएं। कौन सा म्यूज़िक? नहीं, कुछ नहीं। उसने सर झटका और तेज़ी से अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। म्यूज़िक की आवाज़ बंद हो चुकी थी। उसने सीने पर हाथ रख लिया और वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। दिल हनू ज़ोर ज़ोर से धड़कता था। ये क्या देखा था मैंने? बेयकीनी से खुद से सवाल किए। कमरे ने जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से उसे देखे गया। बेड का दूसरा किनारा खाली था। अब वहाँ अब माँ नहीं थी। वो होती तो बताती कि क्या करना है। वो होती तो ज़िंदगी मुख्तलिफ होती। उसने धीरे से अपने दोनों गालों को छुआ, आंखें बंद की, गहरे गहरे सांस खींचे। लेकिन आज वो सांस इन्हें रिलैक्स करने में नाकाम हो रही थी। आज वो खुलते बंद होते नल के पास जाके चला भी नहीं सकती थी कि मेरा पीछे छोड़ दो। आज कुछ नया हुआ था। पहले उलझन होती थी, परेशानी, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। एक के बाद एक काट रखा, फिर परवाह करनी छोड़ दी। माँ को खो दिया, अब क्या रह गया था? पहले जो था वो ख्वाबों में था, ना या खून के छींटों की सूरत नज़र आता था। ऐसा ना था कि नज़र आए लेकिन वजूद ना रखें। अगर जादूगर ने उसकी गर्दन तो पोंछी थी तो खून निकला था, वो हकीकत था। लेकिन आज जो हुआ था ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्या ये इसका वहम था? ये हकीकत। खिड़की पर धीरे से दस्तक हुई, 2 दफ़ा, फिर वक़फ़ा, फिर 3 दफ़ा। वो चौंकी। खिड़की कौन खटखटा सकता था? फिर धीरे से उठी और छोटे कदमों से चलती खिड़की तक आई। पर्दे पर हाथ रखा, उसे हटा दे या ना हटाए। दिल बुरी तरह धड़का, टांगें कमज़ोर हुई, लरजती उंगलियों से पर्दा सरकाया। चेहरा शीशे के करीब किया, बाहर फैला लाल धूप से चमक रहा था। वह कोई नहीं था। क्या वाकई किसी ने दस्तक दी थी, या उसका ज़हन उसके साथ कोई खेल खेल रहा था? पहले से अनदेखी मखलूक से खौफ आता था, आज उससे खौफ नहीं आ रहा था, अपने आप से आ रहा था। खिड़की को फिर से कोई बजाने लगा, हैप्पी बर्थडे टू यू की तर्ज पर। क्या मैं ये सब तस्वर कर रही हूँ? स्ट्रेस, पैरानोमा अब के ऊपर हटाने नहीं उठी। बेड के किनारे पर लेट गई और किशन कानों पर रख लिया। वो थकी हुई थी, स्ट्रेस में थी, उसे सो जाना चाहिए। जब वो आंखें खोलेगी तो ये सब एक बुरे ख्वाब की तरफ फ़ज़ा में तहलील हो चुका होगा। सियाह सफ़ेद अपार्टमेंट में मध्यम जल बत्तियाँ जारी थी। स्याह पर्दे हटे हुए थे और दूर तक फैली शहर की बत्तियाँ और बॉस्फोरस किनारे बनती कश्तियाँ दिखाई देती थी। बीरबल एक सोफे पर लंबा लेटा, सीने के ऊपर दोनों हाथों में मोबाइल पकड़े हुए मुस्कुरा के कुछ टाइप कर रहा था। बैसाखियों की टिक टिक की आवाज़ पर फैज़ी खानम ने चौंक के पीछे देखा। माहिर अपने कमरे से निकल कर आता दिखाई दे रहा था। दोनों बैसाखियों और दुरुस्त टांग के सहारे दूसरे पाँव को कदरे हवा में उठाए वो टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस था। माथे पर बाल बिखरे थे और चेहरे पहले से कमज़ोर दिखाई देता। फिक्र मंदी से आगे बढ़ी। आप खुद क्यों आए? मुझे आवाज़ दी होती। आवाज़ देता तो ये सब कैसे देता? उसने एक तेज़ निगाह किचन काउंटर पर डाली। फैज़ी खानम ने उसकी निगाह के ताकों में देखा। काउंटर पर बेकरी का खुला बॉक्स रखा था जिसमें चंद पेस्ट्रीज दिखाई दे रही थी। वो शर्मिंदगी से आगे बढ़ी, जल्दी से इसे बंद कर दिया। मेरे घर में ये प्रोसेस्ड शुगर और मैदे से बनी चीज़ें क्यों मौजूद हैं? पर हमी से कहता बैसाखी के सहारे आगे बढ़ा तो एक दूसरी डिश दिखाई दी जिसमें चंद अनखाए बकलावे रखे थे। बकलावे, सीरियसली बकलावे? उसने घूर के ने देखा। कभी तुर्क्स को खाते देखा है? बकलावे नहीं, क्योंकि कोई तुर्की में बकलावे नहीं खाता सिवाय सियाहों के। आपको अपनी सेहत का ख्याल है? वो आदमी कह रहा है जो अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए आज वापस गया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए मोबाइल से नज़र उठाए बगैर कहा। फैज़ी खानम सर झुकाए, अब वो चीज़ें समेट रही थी। तुम्हें इस वक्त अपनी बेकरी में होना चाहिए था भी। अब वो सहारों से चलता आतिशदान की तरफ जा रहा था। लकड़ी के फर्श पर बैसाखियों की टिक टिक सीधी सर पर जाके बजती थी। एक रिपोर्ट काफ़ी है ना इस घर में ब्रो? वो टाइप करते मुसलसल मुस्कुरा रहा था। माहिर आतिशदान तक पहुंचा और लाइटर उठाई। एक बैसाखी फिसल के नीचे जा गिरी। उसने कॉफी से देखा, फिर दूर सोफे पर
लेटे बीरबल को। इसके नाम का पहला हर्फ क्या है? किसका? बीरबल हनूस टाइप कर रहा था जिस लड़की के साथ लगे हुए हो। बीरबल फरीद के हाथों से फ़ोन गिरते गिरते बचा। गड़बड़ा के एकदम उठ बैठा, गर्दन मोड़ के उसे देखा। वो आतिशदान के साथ खड़ा था और एक बैसाखी कदमों में गिरी थी। कौन लड़की? मैं किसी लड़की से बात नहीं कर रहा। तुम्हारी नसीहत पर अमल करते आजकल सिर्फ खुद पे फोकस कर रहा हूँ। बजाय सरसरी अंदाज में कहता वो उसके पास आया, झुक के बैसाखी उठे। ये तो मैं अपने केक और मैकरोनीज की तस्वीरें देखकर खुश हो रहा था। आज हमने एक बहुत बड़ी पार्टी के लिए केक डिलीवर किए हैं। बैसाखी उसे थमाते हुए संभल कर मुस्कुराया और मोबाइल स्क्रीन उसकी तरफ लाई। कुछ लोग अपने घर में मेरे केक पसंद नहीं करते, लेकिन दूसरों को मेरी बेकरी का नाम ज़रूर तजवीज़ करते हैं। शरारत से मुस्कुराया। अंदाज मैंने खींचता। मैं किसी को तुम्हारी बेकरी तजवीज़ नहीं करता। मुझे दूसरे इंसानों की सेहत का ख्याल है। वो लाइटर से हम मोमबत्ती सुलगा रहा था। आतिशदान के सेल पर बनी हलाल की तस्वीर मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। बीरबल जवाब पर हंसते जैसे यकीन आया और फिर एक ख्याल से उसकी आंखें चमकी। इस सीमेंट की तस्वीरें मालिक को भेजता हूँ। वो समझता है मेरी बेकरी फ्लॉप है। तुम्हारी बेकरी फ्लॉप है क्योंकि तुम तवज्जो, मेहनत और रूटीन से काम नहीं करते। वो कदम कदम लंगड़ाते हुए चलता एल शेप सोफे तक आया। बीरबल बुरा माने बगैर मुस्कुरा के मोबाइल के बटन दबा रहा था। देखना जल जाएगा रिपोर्ट। मालिक तुम्हारी परवाह करता है, इसीलिए तुम्हें डांटता है। वो सामने सोफे पे बैठा, टांग मुड़ी तो लबों से करा निकली। चेहरे पर तकलीफ के आसार मरतब। बेसाखियाँ फिर से नीचे जा गिरी। मालिक सवाई माहिर के ना किसी की परवाह करता है ना प्यार। उसने गोया नाक से मकड़ी उड़ाई। फिर एकदम वो चौंक के माहिर को देखने लगा। एक मिनट। माहिर बे के पास आज मेरे साथ बैठने के लिए वक्त कहाँ से आ गया? पिछले 2 माह से तुम या तो किताबें पढ़ते हुए कमरे में बंद रहते थे। माहिर खामोशी से उसे देखता रहा। बीरबल की आंखों में शरारत चमक उभरी। तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए है ना? क्या तुम? माहिर खंखारा। बीरबल मुस्कुराहट दबाए सांस रोके उसको मुतज़ा। क्या तुम चंद दिन के लिए मेरी व्हील चेयर चला सकते हो? बीरबल की मुस्कुराहट गायब हुई। अंदर ढला कि क्यों? खफकी से पूछता किचन की तरफ बढ़ा। माहिर ने जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने तुम्हें बैसाखी इस्तेमाल करने के लिए कहा है। वो फ्रिज तक गया और दरवाज़ा खोल के अंदर झुका। व्हील चेयर तुम्हें सुस्त कर देगी। एक कैन निकाल कर उसका ढक्कन खोला। फ्रिज का दरवाज़ा खोला छोड़ के लॉन्च की तरफ वापस आए। फैज़ी खानम ने ज़हरीला बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा बंद किया। बस चंद दिन के लिए? क्यों, कहीं जाना है क्या? उसने खड़े खड़े सोडे का कैन लबों से लगाया। हाँ, लाहौर। सोडा फव्वारे की सूरत उसके लबों से बाहर निकला। कैन हाथ से गिरते गिरते बचा। वो दोहरा होकर खांसा। क्या? लाहौर। वो दोबारा खांसा। सोडा कपड़ों और फर्श दोनों पर गया। फैज़ी खानम उफ़ अल्लाह मियाँ कहती तेज़ी से आ गया और कैन उसके हाथ से लिया। हाँ, लाहौर। वो बहुत जब से उसकी ओवर एक्टिंग देख रहा था। अच्छा, वो क्यों? बीरबल की आंखों में चमक उभरी। काम है। माई ने हाथ बढ़ा के साइड टेबल से पेपर टॉवल उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। इस काम के नाम का पहला हर्फ क्या है? मुस्कुरा के पेपर टॉवल से शर्ट का गिरेबान रगड़ने लगा। माहिर कोनी सोफे के हाथ पर रखे, उंगलियां गाल तले जमाए, माथे पर बाली उसे देखे गया। एम है ना? बीरबल हंस के अपने सवाल का जवाब देता सामने बैठा और पेपर टॉवल बेच कर फैज़ी खानम की तरफ उछाला। कि वो धीरे से बोला तो बीरबल ने माथे को छुआ। ओ हाँ के। फिर टेक लगा कर टांग पर टांग जमाई, सोचने वाले अंदाज में गाल तले हाथ रखे। लेकिन मैं नहीं आ सकता। और वो क्यों? मुझे तवज्जो, मेहनत, रूटीन से अपनी फ्लॉपी खिड़की पर काम करना है। बीरबल, उसकी आवाज़ जैसे ही सख्त और बुलंद हुई उसी तेज़ी से उठ कर हुआ। आ रहा हूँ, कब चलना है? खफकी से दोनों हाथ उठा दिए। वैसे तुम्हें केयर टेकर नर्स का बंदोबस्त करना चाहिए था, बुरा मान के बोला। फिर माहिर का चेहरा देख के ठटका। और यकीनन पहले तुमने नर्स को साथ ले जाने का फैसला क्यों किया? लेकिन खर्चा बहुत आ रहा होगा। फिर तुमने सोचा बीरबल से वही काम मुफ्त में करवा लूँ। प्रीसीसली। माहिर फरीद ने सर को खम दिया। बीरबल ने अफसोस से उसको देखा। तुम कई हफ्ते पहले भी पाकिस्तान जा सकते थे। मैंने कितना कहा तुम नहीं गए। अब क्यों जा रहे हो? क्योंकि ज़ारा ने आज एक ऐसी बात कही है जो मेरे जहन से निकल नहीं पा रही। उसकी आवाज़ अब धीमी थी, शिकस्त खुर्दा सी। लेकिन अगर इस जादूगर ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? उसने एक एक्सीडेंट तुम्हें रोकने के लिए करवाया था। उसकी आवाज़ में तशवीश थी। माई ने फर्श पर रखी बैसाखियाँ उठाई और उनको कोनिए से लगाता उठा। चेहरे पर तकलीफ ऊपर के माध्यम में। माई फिर किसी से नहीं डरता, ना किसी इंसान से, ना किसी शैतान से। उसकी आंखों में झांक कर एक एक लफ्ज़ अदा किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बैसाखियों की टिक टिक और मोमबत्ती की खुशबू सारे में फैली थी। दफ्तर बीरबल के हाथ में पकड़ा मोबाइल थरथराया तो चौंका। मालिक का मैसेज आया था। एक पार्टी से फ्लॉप बेकरी ब्रांड नहीं मान जाती। गो के अल्फाज टाइप शुदा थे, लेकिन वो इनको मालिक की आवाज़ में अपने कानों में सुन सकता था। उसके अलावा मुस्कुराहट में ढले। चल गया रिपोर्ट। स्टूडियो की खिड़की से आती तेज़ रोशनी में चौकोर फ्रेम पर ताना गया रेशमी कपड़ा चमक रहा था। फ्रेम के गिर्द 2 स्टूल्स रखे थे, जिनमें से एक पर वो सर झुकाए बैठी थी। बाल फ्रेंच चोटी में बंधे थे और वो गुमसुम सी हाथ में पकड़े ब्रश को देख रही थी। माला बाजी अब परेशान है तो तुलसी जाना बैठा दोनों गालों को हथेलियों पर कर उसे तशवीश से देख रहा था। उसने चौंक के चेहरा उठाया, फिर उसे देख कर मुस्कुराया और ब्रश नीचे रख दिया। कुछ सोच रही थी। आपका फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था। माला ने एक नज़र करीब रखे फ़ोन को देखा जो बिना आवाज़ के थरथरा रहा था। फिर बेदिली से वापस ब्रश को देखने लगी। वो इसे भी बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे किसी से तो बात करना थी। एकदम उसने ब्रश रखा और मोबाइल उठाया। फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली। एम से माही। माही नीचे घर में ही मौजूद है। इसके सामान की पैकिंग वगैरह करवा रही थी, लेकिन वो माही से क्या कहती
زیاد نے مجھ سے عجیب طریقے سے بات کی ہے۔ ماہی کو ہر ایک پر شک کرنے کی عادت تھی، وہ فوراً سے خالہ کی بات پر غور کرنے لگ جائے گی۔ اس نے نیچے کی سہورا لیکن نہیں، زیاد کی اتنی تعریفیں کرنے کے بعد اس سے کیا کہوں؟ مالا باجی آپ پینٹ کیوں نہیں کر رہی؟ طوطی ریشم پر بنے ادھورے پھول کو فکرمندی سے دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے دوستوں کے نام دیکھ رہی ہوں، ابھی تک لسٹ اوپر نیچے کر رہی تھی۔ آپ کے تو بہت دوست ہیں باجی، جب بھی آپ کو کوئی کام ہوتا ہے کہتی ہیں فلاں کلاس والوں کی بوتیک پہ چلتے ہیں، فلاں کلاس والوں کا ریسٹوران ہے۔ اس کے انداز میں نقل اتار کے بولا تو وہ ہنستی، کیونکہ میں نے ایک پریسٹیجیس یونیورسٹی سے MBA کیا ہے۔ لڑکے لڑکیاں میری کلاس والوں اپنی اپنی زندگیوں میں کامیاب ہے، اور تم نے درست کہا، میرے بہت سے دوست ہیں، کیونکہ میں کسی کو دشمن نہیں بناتی، نہ لوگوں کو ناراض کرتی ہوں۔ لیکن اس کی فون پر جھکی نظروں میں اداسی بھر گئی۔ لیکن اب جب مجھے بات کرنی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دوست اصلی نہیں ہے، سب بس کام تک محدود ہیں، یہ فیور چاہیے، وہ کام کروانا ہے۔ طوطی اب بور ہو کے چاک سے اسکیچ پر لکیریں کھینچنے لگا۔ وہ اسے نہیں سنا تھا، وہ شاید خود کلامی کر رہی تھی۔ دفتر نے اس کا انگوٹھا ایک نام پر رکا، ماہر فرید۔ ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پر در آئی۔ باقی سب دوست تھے، وہ کیا تھا دوست؟ ہرگز نہ تھا، اس سے تو غصے اور نفرت کا تعلق تھا، اس کو نہیں پکارنا، اس نے خود سے بہت پہلے وعدہ کیا تھا۔ کیا واقعی غصے اور نفرت کا تعلق قائم تھا؟ اس نے دل کو ٹٹول کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا، نہ نفرت نہ غصہ، بس دکھ تھا، دھوکے کا زخم تھا، لیکن معافی بھی نہیں تھی، بیچ کا راستہ بھی نہ تھا۔ ہائے اللہ! طوطی کی چیخ پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے ریشم کو دیکھ رہا تھا، جہاں ایک جگہ اس سے غلطی سے پینٹ کا چھینٹا پڑ گیا تھا۔ میں نے آپ کی ساڑی خراب کر دی، اس نے بے یقینی سے مالا کو دیکھا۔ مالا نے گہری سانس خارج کی۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے آرام سے ایک کاٹن بڈ اٹھایا اور اس ڈبے سے پینٹ اتارنے لگی۔ گیلا پینٹ ذرا سے صاف ہونے لگا۔ طوطی کی رنگت ہنوز اڑ رہی تھی۔ جانتے ہو خوشی یا پریشانی میں سب سے پہلے انسان کیا بدلتا ہے؟ طوطی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر سوچا کپڑے نہیں، انسان کا سانس۔ ہر جذبہ انسان کا سانس بدلتا ہے، چاہے خوشی ہو چاہے خوف۔ اگر ہم اپنا سانس کنٹرول کرنا سیکھ جائیں تو ہم سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی زندگی بھی اور اپنے ذہن کو بھی۔ میری ساڑی خراب نہیں ہوئی، اور ذرا سے دھبے کی وجہ سے تمہیں اپنا سانس خراب نہیں کرنا چاہیے۔ کارٹون بڈ رکھا اور اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرائی۔ طوطی نے گہری سانس خارج کی، پورے دل سے مسکرایا۔ طوطی طوطی نیچے سے ماہی کی آوازیں دے رہی تھی۔ طوطی خان کے چہرے کے زاویے بگڑے، وہ سر جھٹکتا اٹھا، دروازہ کھول کے دھپ دھپ سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا۔ کیا ہے ماہی باجی؟ بیزاری سے طوطی کی آواز آئی۔ نکمّے لڑکے، چلو یہ کارٹون اوپر لے کے جاؤ، تکم سے کہی تھی ماہی باجی۔ آپ نے کبھی چائلڈ لیبر کے قوانین پڑھے ہیں؟ ابھی کان کے نیچے دوں گی تو سارے قوانین بھول جاؤ گے۔ پورا دن تمہیں چاکلیٹس کھلاتی ہوں، تھوڑا سا کام بھی کرواؤ سا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کارٹون اٹھائے اوپر آیا۔ قسم کھاتا ہوں مالا باجی، یہ آپ کی سوتیلی بہن ہے۔ تب سے کارٹون نے کونے میں رکھا جہاں اور بھی بہت سے کارٹون رکھے تھے۔ وہ جواباً کچھ کہنے لگے، جب سماعتوں میں کچھ گونجا، وہ ایک دم ٹھہر گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ گانا، یہ الفاظ نہیں تھے، صرف موسیقی تھی، جیسے کوئی اس طرز پر کوئی اعلیٰ موسیقی بجا رہا ہو۔ صرف ایک دن تم نے یہ بات سنی کہ میوزک بج رہا ہے؟ وہ چونکے انداز میں دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ طوطی نے اجنبی سے اسے دیکھا۔ نہیں باجی، آپ کے کان بج رہے ہیں۔ وہ حیرانی سے سر جھٹکتا واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھ آیا۔ ابھی اسے ماہی کے کئی دوسرے کام بھی کرنے تھے۔ وہ جہاں تھی وہیں بیٹھے رہ گئے۔ موسیقی کی آواز اسے ابھی تک سنائی دے رہی تھی، یہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو والا میوزک ہی تھا۔ وہ اسے پہچانتی تھی۔ بے اختیار اس کی انگلیوں نے سیاہ فاختہ والے لاکٹ کو چھوا۔ نظریں فون پر جھکی تو دیکھا وہاں کانٹیکٹ لسٹ میں ماہر فرید کا نام ہنوز جگمگا رہا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ وہ اسے کال نہیں کرے گی۔ وہ کیا جانے کہ ان دیکھی آوازیں اور وجود نہ رکھنے والے چہرے کیا ہوتے ہیں۔